So now we can start. नमस्कार मित्रों, भारतीय विद्यापीठ और कम्युनिकेशन टुडे के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही 153वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने के पहले हमारी परंपरा है सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ। सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं शहीद मंगल पांडे पीजी गर्ल्स कॉलेज में अंग्रेजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर, कवयित्री, समीक्षक, कथा लेखिका डॉक्टर उषा साहनी को, जो अंग्रेजी साहित्य के साथ साथ हिंदी साहित्य में भी समान अधिकार से विभिन्न विधाओं में सृजनरत है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम, क्योंकि आज का दिन 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस के रूप में दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ डॉक्टर उषा साहनी आमंत्रित है। डॉक्टर उषा साहनी। आभार। माँ शारदे के श्री चरणों में दो पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना. A very warm welcome one and all present here on this virtual platform. Today we all have gathered here to understand, talk about World Radio Day, because today, as Professor Bhanavat told, we are celebrating World Radio Day. To begin with the foundation of this webinar series, I would like to highlight here that Professor Sanjeev Bhanavat, the strongest pillar behind this webinar series. We started this webinar series on 2nd of October 2020, when it was not a very cool period. Pandemic was on. Still, Professor Bhanavat took this decision that we should be on such a platform. We should bring the ignited minds together and talk about all the contemporary issues and give this enlightened view and observations and ideas to all the research scholars, the students, the academicians and practitioners. This webinar series was started under the umbrella of Communication Today, and we very successfully, with all the positive efforts of Professor Bhanavat, we completed 100 webinars on 20th of October 2023. Since then, Professor Bhanavat and Professor Hoda from Bharati Vidyapeeth, New Delhi joined together to bring this webinar series at a better position, much more technically sound. And this journey has also completed 52 webinars. And today is the 53rd in the collaboration of Bharati Vidyapeeth. So that way we are at the number of 153, and soon with the efforts of these two giant legends, we'll be completing another century as well. Professor Bhanavat has worked upon all the dimensions of media education through the journal, bilingual media journal, that is Communication Today, which is providing the strong platform to all the research scholars, academicians, practitioners, and students for XYZ, any topic of media education. Not only that, he has taken this initiative also that all these webinars under this webinar series are being recorded in case if the students, if the scholars, if the people who are really wanting to know the ABCs of a particular topic of the contemporary world,
they can definitely go back to the bank that is being created here under his YouTube channel. Professor Bhanavat is also contributing through separate videos that he's preparing, choosing all the major topics, trivial topics, whatever way he can support the people from media fraternity as well as multidisciplinary too. So this entire journey is taking a shape which will bring a very wonderful bank for all the people who are wanting to get the information on media education's dimensions. Many special issues also have been brought forward by Professor Bhanavat under the Communication Today journal. And this webinar series is one more initiative to bring everything online, available to all the people who are wanting to get the knowledge on the subjects related to media education. With this, I know that today is very important day, and we are fortunate that again we are going to listen to three eminent speakers today. So looking forward for that, handing over the platform to Professor Sanjeev Bhanavat. Thank you so much. चलिए, बहुत आभार उषा जी आपके इस व्यापक पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए हमारी सीरीज और कम्युनिकेशन टुडे के बारे में। एक छोटा सा प्रयास मीडिया संबंधी विषयों के बारे में एक चेतना जागृत करने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन मुद्दों को आम आदमी के साथ साझा करने के लिए, उन्हें सेंसिटाइज करने के लिए, और ये छोटा सा प्रयास किस तरह से अपनी लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। आज हमारे पास मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले अनेक शोधार्थियों, शिक्षकों और प्रोफेशनल के भी रिक्वेस्ट आती है कि हम भी आपके इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वक्ता के रूप में या अन्य किसी रूप से। मुझे लगता है कि ये जो यात्रा केवल ये सोच के कि कोविड में कहीं अपन इस यात्रा को जारी रखें हमने शुरू किया, लेकिन आज इसने अपना एक व्यापक स्वरूप बना लिया है। तो इसका हमें अपना एक सुखद अनुभूति है। लगभग 400 से अधिक स्पीकर्स हमारे इसमें जुड़ चुके हैं। तो जो मित्र अभी तक हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ साझा करें और अपनी टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन करें। एक बहुत बड़ा परिवार धीरे धीरे हमारा बनता जा रहा है। लगभग 18 के आसपास हमारे मेंबर्स हो चुके हैं जो इस चैनल से जुड़े हैं, और इसी के साथ जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें भी आप जुड़े, जिसमें करीब 900 से अधिक पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं। आज के हमारे जो विशिष्ट है वो आकाशवाणी के साथ उनकी एक बहुत लंबी यात्रा है। राजीव कुमार शुक्ल जी जो आकाशवाणी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्रोग्राम से रिटायर हुए हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वर्तिका नंदा जिनका रेडियो दूरदर्शन के साथ गहरा जुड़ाव रहा है, इनका विस्तृत परिचय मैं भी दूंगा आपको। और डॉक्टर प्रियंका कटारिया जो 2 दशक से आकाशवाणी और दूरदर्शन में एंकरिंग के रूप में संबद्ध है। विश्व रेडियो दिवस, इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका सिंह जो भारतीय विद्यापीठ में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं। वे उस इंस्टीट्यूट की जनसंपर्क अधिकारी भी हैं। रेडियो पॉडकास्टिंग के क्षेत्र में आप विशेष शोध कार्य कर रही हैं। अपना पीएचडी की उपाधि के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कराया है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के जो नोएडा सेंटर था उससे आपने मास्टर्स डिग्री अपनी प्राप्त की, और आरजे प्रियंका के रूप इंडस्ट्री से भी आपका लंबा जुड़ाव रहा। अतिरिक्त अनेक इवेंट्स के साथ भी आप जुड़ी रही और एक तरह से एक बहुआयामी व्यक्तित्व के साथ आप जिस तरह से अपने विद्यार्थियों का नेतृत्व कर रही हैं, मार्गदर्शन कर रही हैं, और हमारी इस पूरी सीरीज में जब से हमने भारतीय विद्यापीठ के साथ शुरू किया है, आपने पूरी तरह से इसके उस तकनीकी और अकादमिक पक्ष को भी संभाल रखा है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे हमारे आज के तीनों अतिथियों का मुख्य से
स्वागत करें, अभिनंदन करें। प्रियंका सर। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया कि आज के इस वेबिनार जो हमारा वर्ल्ड रेडियो डे पे है मैं उसकी बिगनिंग करूं। और उससे पहले मैं अपने जो गेस्ट ऑफ ऑनर है आज के जो स्पीकर्स हैं, प्रियंका मैम, हमारे सर और मैम, वेलकम करूं। सो दिस इज अ बिहाफ ऑफ BY CAM and communication today. This is just in honor of respect and sir, I guess. Sir, this is an honor of respect and gratitude from our side. प्रियंका जी, शो नहीं हो रहा है, लग रहा है कुछ। सर अच्छा, एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ। सर नाउ इट इज विजिबल। नो। हाँ हाँ, नाउ विजिबल। आई गेस नाउ। हाँ। या थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आज के जो प्रोमिनेंट स्पीकर्स हैं उनका बहुत बहुत वेलकम एंड दिस इज जस्ट ऑनर ऑफ रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड फ्रॉम आवर साइड ऑन दिस वर्ल्ड रेडियो डे। इस दिन जब इस दिन को हम हमेशा याद करेंगे और इस दिन को हम इसलिए भी याद करेंगे बिकॉज इसका जो इम्पैक्ट है रेडियो का कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है हमारी युवाओं पर, उनके हैबिट्स पर, उनके सिचुएशन पर। तो ये सारी चीजें हम हमेशा मेमोराइज करेंगे और रेडियो का जो न्यू फॉर्म है विच इज पॉडकास्ट, उससे हमेशा हम उसी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। सो मोस्ट वेलकम फॉर दिस टॉपिक। नाउ वी कैन बिगिन ऑन दिस वेबिनार। थैंक यू सो मच सर। जिस तरह से बुके से हमारे सभी आज के विशिष्ट वक्ताओं का स्वागत किया गया, उसके पीछे हमारी मूल भावना यही है कि एक पुष्प में जिस तरह की खुशबू होती है और वो खुशबू हमें कहीं आह्लादित आनंदित करती है, उसी प्रकार ये बुके भी एक प्रतीक बने हमारे उन विचारों की खुशबू का, और ये विचार उन भौगोलिक सीमाओं को तोड़ते हुए दुनिया के उस हर हिस्से में पहुंचे जो हमारी भाषा और प्रतीकों और अभिव्यक्ति को समझने में सक्षम है। और इसके माध्यम से जिन मुद्दों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, ये मुद्दे और अधिक गहनता के साथ विचार विमर्श इन पर किया जा सके। इन्हीं विश्वासों के साथ एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विश्व रेडियो दिवस, हालांकि ये दिन मनाने की परंपरा बहुत पुरानी नहीं है। जो रेडियो ने एक सदी की अपनी यात्रा को पूरा कर लिया है। जहां तक हमारे देश की बात करें, 1920 के आसपास ये प्रयोग होने शुरू हो गए थे और विशेषकर अमेरिका और यूरोपियन देशों में ये प्रयोग हुए थे। और पिछले वर्ष रेडियो की एक सदी की उस यात्रा को लेकर अनेक आयोजन हमारे देश में भी किए गए थे। रेडियो क्लब्स के माध्यम से शुरू होती हुई ये यात्रा आज किस मुकाम पर पहुंच गई है, हम सब इसके परिचित हैं। और पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार तकनीकी परिवर्तन हुआ है, उसने भी रेडियो को एक तरह से रिवाइव किया है। मार्कोनी को श्रेय दिया जाता है रेडियो का आविष्कार करने के लिए, उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, लेकिन इसके पहले जगदीश चंद्र बसु ने हमारे देश में प्रयोग करने शुरू कर दिए थे। तो एक तरह से उस परिकल्पना को साकार किया बाद में आने वाले वैज्ञानिकों ने, और रेडियो एक समय था जब हमारे जीवन का अविभाज्य हिस्सा बन गया। इस तकनीकी परिवर्तन के दौर में जब ये FM और इंटरनेट रेडियो और ये सारी तकनीकें शुरू हुई, कम्युनिटी रेडियो, इसने एक तरह से हमारे जीवन के हर पक्ष को प्रभावित किया है। सूचना, शिक्षा, मनोरंजन से लेकर के जीवन के न जाने कितने पक्षों से रेडियो जुड़ा हुआ रहा। और विशेषकर आकाशवाणी, आकाशवाणी का संग्रहालय अपने आप में अद्भुत संग्रहालय है। इस देश की साहित्यिक राजनीतिक विरासत का एक तरह से वो प्रतीक है। महात्मा गांधी पहली और अंतिम बार जब रेडियो स्टेशन आते हैं, वो दिन भी अपने आप में ऐतिहासिक है, जिसे हम पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में भी मनाते हैं। मैं बहुत विस्तार से बात नहीं करूंगा क्योंकि 2012 में विश्व रेडियो दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्पेनिश एकेडमी के अनुरोध पर किया था। तभी से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यह दिवस मनाया जाता रहा है और भारत में भी इसी क्रम में
ये दिवस मनाया जा रहा है। और देश में अलग अलग अंचलों में, न सिर्फ देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर यह, हालांकि इस बार हर वर्ष एक थीम रखी जाती है विशेष रेडियो को लेकर। इसके पीछे मूल दृष्टि यही है कि रेडियो केवल गीत संगीत सुनने का माध्यम नहीं है। रेडियो हमारे जीवन में कहीं परिवर्तन की, एक क्रांतिकारी बदलाव की आधार भूमिका तैयार कर सकने में सक्षम है। तो इस वर्ष की जो थीम है वैसे वो रेडियो और जलवायु परिवर्तन है, लेकिन हमने इसे खुला रखा है। आकाशवाणी और रेडियो प्रसारण से जो मित्र जुड़े अनुभवों के साथ साथ प्रकारांतर से ये सारे विषय कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। चाहे हम भावनात्मक एकता की बात करें, चाहे सद्भाव की बात करें, चाहे बंधुत्व की बात करें, या समाचारों के तेजी से प्रेषण की बात करें। कहाँ पहले कुछ निश्चित बुलेटिन होते थे, सुबह 8 बजे का, रात्रि 8:45 फिर हर घंटे समाचार, और अब हर क्षण समाचार सुन सकते हैं। 24 घंटे आकाशवाणी की सेवाएं हैं। दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क या वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क जो है वो भारत का है। तो अपने आप में एक लंबी कहानियां हैं, बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारी इसके साथ स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। लेकिन हम सुनेंगे आज के हमारे तीनों वक्ताओं का, जिन्होंने अपना जीवन आकाशवाणी और इन प्रसारण माध्यमों के साथ लंबे समय तक बिताया है। और सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, अनुभवी पत्रकार, साहित्यकार और एक ट्रेनर श्री राजीव कुमार शुक्ल जी को। संयोग से आज के हमारे तीनों जो स्पीकर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो इन मंचों पर अलग अलग समय पर किसी न किसी रूप में अपना दिशा बोध देते रहे हैं। एक बार पुनः मैं राजीव को यहाँ आमंत्रित करूंगा। राजीव जी ने हमीरपुर उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ, लेकिन एक छोटे से क्षेत्र से जन्मे राजीव शुक्ल आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण जगत पर उन्होंने अपनी एक विशेष पहचान बनाई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आपने विज्ञान में स्नातक उपाधि प्राप्त की, लेकिन शिक्षा के प्रति अपने मोह को, समर्पण को आपने नहीं छोड़ा और आपने जर्मन भाषा में डिप्लोमा किया। उसके बाद जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स उपाधि ली पहले स्थान से, और अवधेश प्रताप सिंह से आपने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। तो दोनों 3-3 विषयों में आपने स्नातक स्नातकोत्तर परीक्षाएं पास की। और इसके बाद 1981 से आप आकाशवाणी से जुड़ते हैं और आकाशवाणी में कई पदों पर रहकर के आपने काम किया। पैक्स से लेकर के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव से लेकर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्रोग्राम्स के पद से आप सेवानिवृत्त होते हैं। आपको 2 वर्ष का समय मिला, 2002 से 2004 तक अमेरिका के वॉइस ऑफ अमेरिका में प्रतिनियुक्ति पर, डेपुटेशन पर काम करने का, और वहां रहते हुए आपने प्रसारण जगत की जो अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है वो प्राप्त किया। उसकी जो बारीकियां हैं उसको आपने समझा, और वहां भी मुख्य रूप से आप जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स थे उनसे आपका जुड़ाव रहा। उसके बाद आप लगभग 2-3 वर्ष तक आकाशवाणी दिल्ली में केंद्र निदेशक रहे, 2015 से 17 तक, और 2017 में आप अपर महानिदेशक आकाशवाणी के पद से सेवानिवृत्त होते हैं। आकाशवाणी में रहते हुए अक्सर वहां के जो प्रोग्राम से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं उन्हें कई तरह का मौका मिलता है अलग अलग क्षेत्रों में उन कार्यक्रमों के प्रसारण से सीखने का। यही स्थिति राजीव जी के साथ रही। उन्होंने चीन में होने वाले एशियाई खेलों से लेकर लंदन ओलंपिक और दक्षिण कोरिया में होने वाले जो एशियाई खेल थे उनकी भी आपने कवरेज की है, और कुछ विशिष्ट जो स्पोर्ट्स हैं उनके भी आप कमेंटेटर के रूप में, क्रिकेट और अन्य खेलों में एक अप्रूव्ड कमेंटेटर के रूप में भी आपने कमेंट्री की है। इसी के साथ गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जैसे जो घटनाक्रम है या जिस प्रकार के इवेंट्स है राष्ट्रीय महत्व के, इनकी भी आंखों देखा हाल सुनाने का आपको मौका मिला है। कला और संस्कृति से भी आपका जुड़ाव रहा है। आप आकाशवाणी के नाटकों में ए ग्रेड कलाकार के रूप में, जो मित्र आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि वहाँ कलाकारों की ग्रेडिंग होती है। राजीव जी को ए ग्रेड के एक कलाकार के रूप में आपने अभिनय भी किया है उनके विभिन्न धारावाहिकों में। इसके अलावा देश के अनेक प्रतिष्ठित संस्थान, चाहे वो भारतीय जनसंचार संस्थान है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इग्नू है, और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय है, आदि अनेक राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी जुड़े रहे हैं। हिंदी और अंग्रेजी में कविता, कहानियों और साहित्यिक समालोचनाओं के साथ आपका सक्रिय जुड़ाव है।
विभिन्न भारतीय विदेशी भाषाओं में आप निरंतर अनुवाद कर रहे हैं। प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिकाएं, पहल, वसुधा, कथन आदि ऐसी जो पत्रिकाएं हैं अपने दौर की अनेक ये चर्चित और प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में रही है, इसमें भी आप निरंतर लिखते रहे हैं। फोटोग्राफी और पर्यटन में आपकी विशेष रुचि रही है। ब्लॉग लेखन और सोशल मीडिया पर भी आप सक्रिय हैं। यूनेस्को जैसी संस्थाओं के साथ भी आपका गहरा जुड़ाव रहा है। तो एक तरह से आपका कार्य क्षेत्र प्रसारण जगत के साथ साथ जो उससे संबद्ध अनेक क्षेत्र हैं उनके साथ भी साहित्य, शिक्षा, खेल, समाज सेवा आदि से आपका गहरा जुड़ाव है। मैं भाई राजीव शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि आज के इस विश्व रेडियो दिवस के ऊपर रेडियो के साथ जो आपकी एक लंबी पारी रही है उसको लेकर के आज के उस अवसर पर हमें संबोधित करें। भाई राजीव कुमार शुक्ला जी नमस्कार प्रोफेसर भानावत जी और सभी मित्रगण जो यहाँ मौजूद हैं, सभी सम्मानित लोग जो हैं मौजूद हैं और जो लोग हमें सुन रहे हैं। मैं अपने आप को कभी कभी देखता हूँ, बीच में कभी नहीं देख पाता। शायद आपका जो ये डिस्प्ले है इसमें, इसलिए उम्मीद है कि मैं ठीक ठाक दिखाई दे रहा हूँगा, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं उसमें कैसा मेरा वो आ रहा है। बहरहाल तो सर देखिए बिल्कुल ऐसा है, आपका बढ़िया दिख रहा है चेहरा, बिल्कुल जो है ना, जो टीवी में फ्रेम जैसा होता है है, दिख रहा है। टीवी में जैसा फ्रेम होता है उसी तरह से दिख रहा है। तो बहुत है ना, बढ़िया। हाँ जी हाँ तो बिल्कुल। मैं आपको ये बताऊं कि जब ये विश्व रेडियो दिवस की बात होती है तो मेरी अपनी भी एक स्मृति शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि मैंने बहुत सारे काम मैंने किए। उसमें से एक काम ये था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी एक विभाग आकाशवाणी महानिदेशालय में होता है और उसको भी संभालने का मौका मुझे मिला। उसमें जब मैं था तभी ये प्रस्ताव शुरू हुआ था स्पेन से। आपने बिल्कुल सही बताया, स्पेन से शुरू हुआ था। फिर क्या हुआ था, उसके बाद के यूनेस्को ने दुनिया भर के रेडियो स्टेशन से या संस्थाओं से सुझाव मांगे थे कि ये जो विश्व रेडियो दिवस है इसे कब मनाना चाहिए। तो उसमें हुआ ये था कि हम लोगों ने भी सुझाव दिए थे। मेरा ख्याल है दुनिया भर से सुझाव उनके पास आए थे और स्वाभाविक है कि जो सुझाव दिए गए होंगे उनमें अपने अपने क्षेत्रों को या अपने क्षेत्र की किसी प्रसारण घटना को प्रमुखता दी गई होगी। अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ ने तय किया होगा कि इसमें बड़ी समस्या होगी, तो उन्होंने जो निर्णय किया वो क्या किया कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना रेडियो, जिसे यूएन रेडियो कहा जाता है, वो शुरू हुआ था 13 फरवरी संभवतः 1946 का साल था, जहां तक मुझे याद है। तो उस साल वो शुरू हुआ, तो उसी की याद में 13 फरवरी को उन्होंने विश्व रेडियो दिवस के रूप में चुन लिया, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र संघ का रेडियो यानी दुनिया भर का रेडियो, आप ये मान लीजिए उसे। तो इस तरह वो शुरू हुआ और उसके बाद जैसा आपने बताया हर साल। लेकिन सच्चाई ये है कि रेडियो को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय बिरादराना भाव पहले से रहा है। आपने जिक्र किया कि मैं वॉइस ऑफ अमेरिका में था। भारत में बहुत बड़ी संख्या में वॉइस ऑफ अमेरिका के तो लोग हैं ही, लेकिन बीबीसी के बहुत श्रोता रहे हैं और भी तमाम दुनिया के ऐसे प्रसारण संस्थाएं हैं जिनके प्रसारण देश में सुने जाते थे रेडियो के जरिए। हमारी पीढ़ी के से लोगों को रेडियो सिलोन की याद होगी। रेडियो सिलोन की याद होगी तो बिनाका गीतमाला की याद होगी। बिनाका गीतमाला की याद होगी तो अमीन सयानी की याद होगी, जो कुछ दिन पहले इस दुनिया से रुखसत हुए। और जो मैंने कहीं उनके बारे में लिखा था कि वो हमेशा आप याद करें, आमतौर पर लोग जब संबोधन करते हैं तो भाइयों और बहनों कहते हैं। अमीन सयानी साहब बहनों और भाइयों कहते थे। तो मैंने कहीं लिखा था कि स्त्री विमर्श जो आज का बहुत केंद्रीय विषय है, उसका एक बड़ा शालीन और शांत सा इस्तेमाल अमीन सैनी साहब ने बहुत पहले कर दिया था, जब वो बहनों और भाइयों कहा करते थे। और अमीन सैनी साहब ने उसमें एक बहुत बात और खास कही थी अपने संस्मरणों में। उन्होंने बताया था कि गांधी जी उनके घर आया करते थे। उनकी माँ गांधीवादी थी और गांधी जी कहते थे कि जो जबान है बात संवाद की, क्योंकि गांधी जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो एक मास्टर कम्युनिकेटर भी थे, यानी सीधी सादी भाषा में लोगों के दिल तक पहुंच जाने वाले, लिखने में भी और बोलने में भी। तो अमीन सैनी साहब ने ये बात उनसे गांठ बांधी कि हिंदुस्तानी जिसे हम कहते हैं, जिसमें हिंदी भी है, कुछ उर्दू भी है और भी हिंदुस्तान की तमाम जो भाषाएं हैं, क्योंकि भारत की विविधता तो अद्भुत है। ऐसी विविधता दुनिया में कहीं है ही नहीं, चाहे वो भूगोल की हो, चाहे वो नस्लों की हो, चाहे वो धर्मों की हो, चाहे भाषाओं की हो, चाहे रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, धर्म हो, चाहे जो जिस ढंग से आप देखें, तो उन सब के बीच में एक जो संयोग होता है। खैर, तो ये शुरू हुआ। आपने जिक्र किया था कि भारत में शुरुआत कब हुई, तो उसका भी बहुत संक्षेप में अगर आप, हमारे कुछ लोग हो सकता है रुचि रखते हो, 1923 में भारत में
रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, रेडियो क्लब ऑफ कलकत्ता, इनके जरिए शौकिया प्रयास हुए, यानी एक एक जैसे वन ऑफ जिसे कहते हैं, एक बार किया गया कि भाई ये रेडियो इस तरह से ब्रॉडकास्ट होता है और सुना जा सकता है। लेकिन जो नियमित ब्रॉडकास्ट है, लगातार जो आज शुरू हुआ तो चलता ही रहा, वो शुरू हुआ था 23 जुलाई 1927 को, और ये एक बॉम्बे में, तत्कालीन बॉम्बे, आज का मुंबई, वहां पर एक इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी नाम की निजी कंपनी थी, उसने इसको शुरू किया। और उस समय जो वायसराय थे, क्योंकि अंग्रेजी शासन का जमाना था, वो उद्घाटन में गए थे। और उसके बाद फिर 1930 से, अब उसकी कहानी में बहुत विस्तार में हम नहीं जाएंगे, पर 1930 से तब की सरकार ने इसे अपने हाथ में लिया। शुरू में इसको नाम दिया इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। एक सज्जन आए, लेवनिल फील्डिंग, बीबीसी से, जिन्होंने भारत में आकर उसको वाकई गति दी, और उन्होंने ही पहली बार ऑल इंडिया रेडियो नाम सोचा और उसको लागू कराया। और उसका आप जानते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का जो संयुक्त नाम होता था, वो संक्षिप्त वो AIR होता था, जो एयर भी बन सकता है। और प्रसारण की दुनिया में एक शब्द होता है, ही इज ऑन एयर, या वो एयर पर हैं। तो वो एयर जो है वो बहुअर्थी हो गया। एक खूबसूरत ढंग से उसका एक अर्थ और निकला। साथ साथ आप, हमारे देश में एक परंपरा थी, हमारी पौराणिक कथाओं में खूब आप जानते हैं, आकाशवाणी, जब वो आकाश से वाणी आती थी, देवता बोलते थे और लोग बोलते थे। कृष्ण के जन्म की कथा आप याद करें, बहुत सी कथाएं हैं कि देवता बोलते थे। तो मैसूर में एक स्टेशन शुरू हुआ था, उसके साथ भी जुड़ा जाता है। और हमारे जो महान कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने भी कलकत्ता स्टेशन पर एक बार, जो उस समय कलकत्ता स्टेशन था, वहां पर एक कविता में आकाशवाणी की संज्ञा का इस्तेमाल किया था। तो बाद में भारत जब आजादी हुई, तो ऑल इंडिया रेडियो के साथ साथ आकाशवाणी को भी एक आधिकारिक नाम के रूप में अपना लिया गया। आपने बिल्कुल सही कहा, शुरू में जब ये शुरू हुआ था, उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, तो तय बात है कि उस समय इसके अंदर प्रधानता स्वाधीनता संग्राम की तो हो नहीं सकती थी। लेकिन ये था कि संगीत में, साहित्य में इसने अपना भावी हस्तक्षेप तभी शुरू कर दिया था। और लॉयनल फील्डिंग जो है, वो बल्कि गांधी जी को भी कहा करते थे कि आप आइए, और गांधी जी कहते थे कि जो मैं कहूंगा आप ब्रॉडकास्ट कर नहीं पाएंगे। लेकिन बाद में और कई नेता स्वतंत्रता संग्राम के आए। लेकिन साथ साथ अगर बहुत संक्षेप में जिक्र करते, सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद रेडियो नाम से शुरू किया था, जब वो अपनी निर्वासित सरकार थी, लेकिन वहां बनाई थी। और उससे उन्होंने बहुत से ब्रॉडकास्ट किए जो भारत में आते थे। सुभाष बाबू की बहुत सी जो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास आज मौजूद है, वो दरअसल आजाद हिंद रेडियो से किए गए उनके संबोधन है। उसी तरह से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद उषा मेहता नाम की एक नौजवान विद्यार्थी थी बंबई में, जिन्होंने कांग्रेस रेडियो नाम से एक भूमिगत रेडियो शुरू किया, जिसमें देश में आजादी की लड़ाई की खबरें दिया करती थी। तो एक, आप कह सकते हैं कि ये भी एक परंपरा रही। और साथ साथ 13 सितंबर संभवतः तारीख है 1931 का साल, जब गांधी जी ने अमेरिकन रेडियो पर एक लंबा भाषण, उनका लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ, जिसमें उन्होंने भारत की आजादी के बारे में बात की। तो आजादी के बाद तो खैर भारत में रेडियो की भूमिका बदल गई, और ये भूमिका खास हो गई देश के नवनिर्माण में, संवैधानिक मूल्यों की बात, राजनीतिक एकता की बात, सांप्रदायिक और भाषाई सौहार्द की बात, विकास की बात, कुरीतियों को दूर करने की बात, स्त्रियों और अन्य लोगों के साथ अधिकार दिलाने की बात। तो एक इतनी पूरा जो देश के नवनिर्माण का एक बड़ा अभियान था, उसमें आकाशवाणी अपनी भूमिका निभाती रही। अब मैं एक जिक्र करके, फिर दोबारा मौका आएगा तो उस पर विस्तार में जाऊंगा। जो इस बार की थीम है, हर बार आपने कहा हर बार एक थीम होती है, इस बार की थीम है रेडियो और जलवायु परिवर्तन। तो भानावत जी, एक संयोग की बात है कि जब मैं काम करा, तो मेरी भूमिका में पॉलिसी नाम का एक पोर्टफोलियो होता था। उसमें मुझे ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, डिजास्टर, उस पर काफी काम करने का मौका मिला। विदेश भी मैं गया, और वहां मैंने अंतरराष्ट्रीय और हमारे देश में, मैं आपको कह सकता हूँ, हमारे देश में चाहे वो साइक्लोन हो, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो बाढ़ हो, जो तमाम तरह की जो आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, शायद ही आकाशवाणी के इलाके के और देश भर के लोगों के अपनी जान खतरे में डालकर सिलसिले नहीं जुड़े हैं, कहाँ नहीं जुड़ी हैं। आप नाम लीजिए, मैं बताऊंगा कैसे क्या क्या। श्रीनगर की बाढ़ हो, या सुनामी की कथा हो, या बिहार की में कोसी की बाढ़ हो 2008 की, सबके साथ कुछ तो कुछ जुड़ा हुआ है। और निश्चित रूप से, अद्भुत रूप से, और बाद में हम लोगों ने बहुत दूर तक जा करके इसमें एक संस्थागत
जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनके साथ भी संवाद किया। और निश्चित रूप से मैं एक लाइन अंत में और बता दूं कि क्यों जलवायु परिवर्तन या प्राकृतिक आपदा के साथ रेडियो का बड़ा महत्व है। होता क्या है, देखिए, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो समुद्री तूफान हो, चाहे अन्य कोई बाढ़ हो, सबसे पहले जो चीज उसमें खराब होती है, जैसे कि आपूर्ति रुक जाती है, वो क्या होती है? बिजली। बिजली चली जाती है। बिजली चली जाती है तो बहुत कुछ रुक जाता है। लेकिन रेडियो चूंकि चल सकता है, उसके ट्रांसमीटर्स को चलाने की विशेष व्यवस्था की जाती है कि वो चलता रहे। और साथ-साथ क्या होता है कि चूँकि सुनने के लिए आपको, पहले जो रेडियो होते थे, अभी भी रेडियो है, वो बैटरी से भी चल सकते हैं और अब मोबाइल पर भी रेडियो आप सुन पाते हैं। अब आप तो उसमें क्या है कि रेडियो कई बार अकेला ऐसा साधन बचता है, जो ऐसी स्थिति में, जबकि सब कुछ तहस-नहस हो गया हो, अन्य सब कुछ रुक गया हो, अन्य सब कुछ जो है वो प्रभावी न रह गया हो। मैं अमेरिका में था, आपने ज़िक्र किया, अमेरिका में मैंने देखा कि वहाँ टेलीविज़न पर ये एक आता था कि आप सर्वाइवल किट क्या है डिज़ास्टर में। उसमें वो कहते थे कि आप अपने साथ कुछ पानी रखिए, खाने की चीज़ें रखिए, कंबल रखिए, टॉर्च रखिए और एक बैटरी ऑपरेटेड रेडियो रखिए। बैटरी ऑपरेटेड रेडियो सेट जो है वो सर्वाइवल किट का पार्ट था। और वो अपने यहाँ भी, अगर आप बताऊँ आपको, मुझे बताते हुए खुशी है कि एनडीएमए ने जो अपने यहाँ गाइडलाइंस इश्यू की हैं, उसमें उन्होंने भारत में भी सर्वाइवल किट में एक रेडियो को शामिल किया है। तो इस तरह से रेडियो की बड़ी पुरानी भूमिका है और वो भूमिका अब और दक्ष और अधिक महत्वपूर्ण और अधिक संयोजित होती चली जा रही है। आप मुझे और मौका देंगे तो मैं उस विषय पर और बात करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया और अपनी कुछ बातें कहने का मौका दिया। चलिए, बहुत बहुत आभार भाई राजीव जी। आपने रेडियो के उस रोमांच और उसके इतिहास से अपनी बात शुरू करते हुए किस तरह से रेडियो को सर्वाइवल किट में शामिल किया गया है, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि रेडियो किस प्रकार से जो प्राकृतिक त्रासदियां हैं, भूकंप है, सुनामी है, इस तरह के जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, तो किस तरह से जब सूचनाओं के सब तंत्र बंद हो जाते हैं तो रेडियो अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकता है। आकाशवाणी की बात आपने की, तब तो कहते यही है कि आकाश जब सूचनाओं के सारे स्रोत बंद हो जाते हैं तब आकाशवाणी। जब जेल के सारे दरवाजे बंद हो गए, कहीं से कोई सूचना जा नहीं सकती थी, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। ये आकाशवाणी की प्रतिष्ठा हुआ करती थी। और जब हम छोटे थे, मुझे याद है, ये खबर रेडियो पर आ गई, गलत हो ही नहीं सकती। ये विश्वसनीयता और ये क्षमता जो है उस समय आकाशवाणी में हुआ करती थी। और बड़े गर्व से आज भी हम लोग लिखते हैं कि रेगुलर ब्रॉडकास्टर ऑन ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। तो किस तरह से उसने हमारे घरों में जगह बनाई है। आकाशवाणी से अपना नाम सुनने के लिए हम कितने लालायित होते थे, पत्र भेजते थे फिल्मी गीतों में नाम सुनने के लिए। और उस समय तो मारवाड़, मुंडवार, कौन से ऐसे शहर थे, झुमरी, तलैया, वो केवल रेडियो के कारण ही बहुत पॉपुलर हो गए थे। तो ये आकाशवाणी या रेडियो हमारी पूरी उस सांस्कृतिक यात्रा का एक तरह से प्रतीक है। बाद में कोई सवाल जवाब होते हैं तो इस बात को और विस्तार से अपन उठाएंगे। और अब हमारे साथ है डॉक्टर वर्तिका नंदा। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात कहें। वर्तिका जी का जो अनुभव है मीडिया और शिक्षण में, वो बहुत व्यापक और विविध है। शायद मेरा पहला परिचय उनसे हुआ था जब वो एनडीटीवी क्राइम रिपोर्टर के रूप में काम कर रही थी। वो टेलीफोनिक बातचीत थी। उसके बाद वो आईआईएमसी में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में ज्वाइन किया और वहीं एक सेमिनार में उनसे मुलाकात होती है। 2 तरह की ये यात्रा, उनके उस पूरे अकादमिक और शैक्षिक यात्रा का मैं साक्षी रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने किस तरह से लोकसभा टीवी में काम किया, राष्ट्रीय सहारा चैनल में काम किया और अलग अलग जगह उन्होंने रहते हुए जो अपना मुख्य मिशन था कि किस तरह से प्रसारण को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाया जाए, पुस्तकें लिखी टेलीविजन को लेकर के। क्राइम, क्योंकि क्राइम आपका एक शुरुआती दौर में आपने रिपोर्ट किए थे, किस तरह से मीडिया में क्राइम रिपोर्टिंग हो रही है, उनको लेकर के आपने अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया। और फिर आपने लेडी श्री राम कॉलेज, वहाँ दिल्ली का क्यों बल्कि मतलब भारत का जो प्रतिष्ठित कॉलेज है, वहां से आपने अपना अध्यापन का करियर शुरू किया और इस समय वहां हेड के पद पर आप कार्य कर रही हैं। फिर आपने जो एक नया कार्य शुरू किया, मेरे ख्याल दुनिया का तो मुझे नहीं पता, लेकिन भारत में तो ये अपने आप में एक अनुभव बिल्कुल नया है। आपने तिनका तिनका करके अपना एक फाउंडेशन बनाया और जेल रिफॉर्म्स पर आपने काम किया, विशेषकर दिल्ली, आगरा, एमपी और जो पड़ोसी राज्य हैं, वहां की जेलों पर आपने विशेष
शोध अनुसंधान किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कमेटी इसको लेकर के बनाई थी। उस कमेटीज में भी आप साथ में रही और पुलिस के साथ मिलकर के आपने उन जेलों में रेडियो को पहुंचाया और किस तरह से वहां की जो विशेषकर महिला कैदी हैं उनके साथ मिलकर के उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए जिस तरह से काम किया वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं यूँ कहूँ कि वो एक जेल सुधारक और लेखिका है तो शायद गलत नहीं होगा। आपने तिनका तिनका भारतीय जेलों पर एक जो अनूठा अभियान आपने शुरू किया है और इसके तहत जेलों को मीडिया, साहित्य और सृजन से जोड़कर ये उनका जो एक प्रयोग धर्मिता है वो वास्तव में सम्मान के योग्य है और शायद इसीलिए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 2014 में आपको स्त्री शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया था और ये पुरस्कार उन्हें मीडिया और साहित्य के जरिए महिला अपराधों के प्रति जागरूकता लाने के लिए दिया गया था। 2007 में आपने दिल्ली से भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली से आपकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी टेलीविजन और अपराध पत्रकारिता, जिसे सूचना प्रसारण मंत्रालय के एक प्रतिष्ठित पुरस्कार भारतेंदु हरीशचंद्र पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आप 2 बार सम्मानित हो चुकी हैं और देश की जेलों में रेडियो लाने में आपकी महत्वपूर्ण योगदान रहा। 2019 में देश की सबसे पुरानी जेल आगरा जिला की जो जेल है उसमें आपने रेडियो स्थापित किया। 2021 में हरियाणा की जेलों में रेडियो लाने का श्रेय उनको जाता है और 2018 में जैसा मैंने आपसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस M.B. लोकर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने जेलों में महिलाओं और बच्चों की स्थिति के आकलन के लिए एक जो पत्रिक प्रक्रिया है उसमें भी आपको सम्मिलित किया। देश की 3 जेलों के लिए परिचय गान लिखने के लिए जेल के बंदी लिखा आपने, जिसे जेल के बंदियों ने ही उन्हें गाया था और 2020 में ICSR की एक इम्प्रेस स्कीम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत जो आपको दी गई थी भारतीय जेलों में संचार, उस पर आपने अपना एक पूरा शोध जो है वो पूरा किया है और इसके प्रकाशन की प्रक्रिया भी जारी है। तो देश दुनिया में जाने का आपको मौका मिला है। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड आदि अनेक देशों की आपने यात्राएं की है और जो कुछ कार्य आपने इन क्षेत्रों में किया है उनकी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आपने एक तरह से कार्य किया है और हाल ही में आपकी एक पुस्तक प्रकाशित की है NBT नेशनल बुक ट्रस्ट, इन्होंने प्रकाशित की है प्रिजन इन रेडियो। तो ये अपने आप में एक अनूठा प्रयास है और इसका एक बहुत बड़ा समारोह भी जो हमारा विश्व पुस्तक मेला है उसमें आयोजित किया गया था, जिसमें देश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित अनेक साहित्यकार, समाज सुधारक और इन मुद्दों से जुड़े हुए जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने उसमें सहभागिता की थी। तो मैंने वर्तिका जी से अनुरोध किया था कि आप आज के इस अवसर पर ये जो आपकी अनूठी योजना है जो आपने शुरू किया, इसकी पृष्ठभूमि से लेकर के जो आपके कुछ अनुभव रहे वो हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर वर्तिका नंदा। वर्तिका जी सुन रही हैं आप मुझे? भनावत सर नमस्कार। मेरा ख्याल आप मेरी आवाज आ रही है आप तक? सब तक आ रही है आवाज? जी मैम, बिल्कुल आ रही है। मुझे खुशी है कि विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आज आप सबसे मैं बात कर पा रही हूँ। भनावत सर को याद होगा कि मैं बहुत सालों से ये बात कहती रही कि जेल के बारे में कहने का समय अभी नहीं आया है और इसीलिए मैंने ज्यादातर वेबिनार्स को में शिरकत नहीं की और ज्यादातर कार्यक्रमों में भी शिरकत नहीं की। लेकिन एक अपवाद था और वो था आकाशवाणी। उसके अलावा बाहर की दुनिया ज्यादा कुछ भी नहीं जान पाई कि जेल के रेडियो में क्या हो रहा है। लेकिन अब एक संकल्प पूरा हुआ और पिछले सोमवार को रेडियो इन प्रिजन का विमोचन हुआ, जिस पर कई साल से काम चल रहा था। तो मुझे अब लगा कि ये सही समय है और आपसे जब संवाद हुआ तो मुझे ये महसूस हुआ कि जेल के रेडियो पर बात की जा सकती है। अभी बात हुई उषा मेहता की किताब की और वो किताब कांग्रेस रेडियो जबरदस्त किताब है जो ये बताती है कि कितनी मुश्किल परिस्थितियों में रेडियो उपजा और चलने लगा। और इसके अलावा बहुत सारी और ऐसी मिसालें हैं जो अभी राजेश शुक्ल जी कह रहे थे। अपनी चुनौतियों से गुजरता हुआ रेडियो अपने आप को कैसे स्थापित कर पाया। बाहर की दुनिया रेडियो को खूब चाव से सुनती है, लेकिन वही बाहर की दुनिया जब जेल के अंदर चली जाती है तब उसे समझ में आता है
कि आजादी क्या है और रेडियो क्या है। जेल का रेडियो लाने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था। 90 के दशक में जब पहली बार मैंने तिहाड़ जेल को देखा एक पत्रकार के तौर पर, और उसके बाद फिर लगातार जेल मेरे जीवन का हिस्सा रही, और फिर तिनका तिनका का जन्म हुआ। आगरा की जेल का जो रेडियो है वो 2019 में स्थापित हुआ, और ठीक कुछ समय बाद जब कोरोना आया तब जेलों में ये समझ भी पनपने लगी रेडियो क्यों जरूरी है। क्योंकि जब कोई और साधन नहीं था, विजिटेशंस बंद हो गई थी, बाहर के लोगों से मिल नहीं पा रहे थे, टेलीफोन उस तरह से सुचारू तौर पर नहीं मिल पा रहे थे, और उसमें भी एक समय सीमा थी, तब रेडियो साथी बना। उसके बाद उसी दौर में हरियाणा की जेलों में रेडियो लाने की बातचीत जब मैंने वहां के डीजी से की, और मैंने उस समय उन्हें कहा कि मैं एनबीटी के लिए किताब पर काम कर रही हूँ और आपकी जेल में रेडियो नहीं है, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद हरियाणा की जेलों में रेडियो लाने का काम शुरू हुआ, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 20 में से 12 जेलों में रेडियो आ चुका है, और किसी भी जेल में रेडियो आज तक एक दिन के लिए भी नहीं रुका। उसी तरह जिला जेल देहरादून में रेडियो लाने की प्रक्रिया हुई, आज भी वो रेडियो चल रहा है, और एक नेत्रहीन बंदी है जो कि इस रेडियो को विशेष तौर पर संचालित कर रहे हैं। इन तमाम जेलों में बंदियों को सिलेक्ट किया जाता है रेडियो जॉकी के तौर पे, उन्हें तैयार किया जाता है जर्नलिस्ट के तौर पर, और फिर उन्हें रेडियो से जोड़ दिया जाता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि रेडियो की इस पूरी प्रक्रिया पर मैं बाहर की दुनिया से बात क्यों नहीं करना चाहती थी, या ये भी सोच सकते हैं कि इस रेडियो के काम से अकादमिक दुनिया का कितना जुड़ाव है। दूसरे सवाल का जवाब है नहीं, कोई जुड़ाव नहीं है। अकादमिक दुनिया जेल के रेडियो को बहुत शायद महत्वपूर्ण ना समझती हो, और इसकी अपनी वजहें भी हो सकती हैं। जेल के लिए एक हीन स्थिति का होना, जेल को टापू के तौर पर सोचना समझना, और जेल को एक नीरस विषय के तौर पर समझना, या फिर जेल को कुछ ऐसा समझना जो रातों रात चकाचौंध ला दे, रातों रात डॉक्यूमेंट्री मेकर के तौर पर स्थापित कर दे, रातों रात शोहरत दिला दे। ये दो ही स्थितियां जेल के बारे में आमतौर पर बाहर के लोग सोचते हैं, या तो जेल किसी काम की नहीं है, या फिर जेल बहुत काम की है। ये दोनों ही चीजें सही नहीं। जेल बीच की जगह है, और जेल हमारे समय को मांगती है, हमारी ताकत को मांगती है, हमारी ऊर्जा को मांगती है, और जेल हमारे धन को मांगती है। मुझे बताते हुए और भी गर्व हो रहा है कि तिनका तिनका का ये सारा काम किसी भी तरह से किसी से भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसमें किसी की कोई फंडिंग नहीं है, किसी का भी कोई सपोर्ट नहीं है। ये अपनी मेहनत से, अपनी सैलरी से चलता है, और अपनी निजी जरूरतों को काट कर चलता है, और इसलिए मुझे इसका बहुत गर्व है। इसलिए भी गर्व है कि बहुत से लोग जो इस रेडियो के साथ जुड़ते हैं, जेल में आने से पहले उन्होंने रेडियो में कभी कोई काम नहीं किया था। उनके लिए रेडियो सिर्फ एक सुनने की चीज थी। कभी गाड़ी चलाते हुए, कभी घर पर बैठे हुए उन्होंने रेडियो को सुना भर था। रेडियो के कंटेंट क्रिएटर, रेडियो के वाचक, रेडियो के सहयोगी वो जेल में आने के बाद हुए। जेल का ये रेडियो, हम इसे तिनका जेल रेडियो कहते हैं। उसके अलावा तिनका तिनका की कई किताबें, जिसमें आपने अभी जिक्र किया तिनका तिनका तिहाड़, और कल वैलेंटाइंस डे है, तो मैं आज ये सोच रही थी कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में भी जो लोग तिहाड़ के सामने से गुजरते हैं, उन्हें इस बात का ख्याल भी नहीं होता होगा कि इतने बड़े शहर में प्यार की सबसे बड़ी इमारत के तौर पर अगर कोई चीज सबसे आगे जिंदा है तो तिहाड़ की वो दीवार। और वो दीवार इसलिए है क्योंकि उसने कविता लिखी है बाहरी दीवार पर, जिसे बाहर से गुजरते हुए लोग बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। सुबह लिखती हूँ, शाम लिखती हूँ, इस चार दीवारी में बैठकर मैं बस तेरा ही नाम लिखती। ये एक बंदिनी थी जो जेल में बंद थी, मैं उससे अक्सर मिला करती थी। उसकी जिंदगी का एक ही दुख था कि जिससे वो प्यार करती थी उससे उसकी शादी नहीं, और वो दूसरी जेल में बंद था तिहाड़ में ही, लेकिन क्योंकि वो पति पत्नी नहीं थे वो मुलाकात नहीं कर सकते। अब फिर देखिए नियत और नियति का खेल।
सीमा तिनका तिनका तिहाड़ का एक हिस्सा बनी, उसकी कविताओं को हमने छापा और कविता का एक हिस्सा तिहाड़ जेल की सबसे लंबी दीवार पर पेंट कर दिया गया, जो आज भी सबसे लंबी म्यूरल पेंटिंग है। और उसका जादू ऐसा हुआ कि पेंट होते ही जब एलजी ने उसको, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जब उसको उद्घाटन किया, तो दोनों पक्षों के माता पिता उस दीवार को देखने आए, क्योंकि उन्होंने अखबारों में उसके बारे में पढ़ा था और दिल पिघलने लगे और दोनों की शादी हो गई। वो दीवार आज भी जिंदा है और इसलिए मैं ये मानती हूँ कि जेल में ऐसा बहुत कुछ है जिसे हम जिसकी तरफ हम देखना नहीं चाहते। मैं आपको ये किताब भी दिखाना चाहूंगी, शायद आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्या मुझे? ये वो किताब है रेडियो इन प्रिजन, जो थोड़ा सा और ऊपर कीजिए, थोड़ा ऊपर कीजिए। और हाँ, 3 हाँ, फरवरी को ये रिलीज हुई है और इसे नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरपर्सन ने इसे रिलीज किया। उनके साथ एडिटर इन चीफ ब्रूट इंडिया की भारत की एडिटर शामिल थी और बहुत से लोग, मैं देख रही थी कि हमें मेन पेविलियन मिला जहाँ पर ये बुक रिलीज हो रही थी, तो बहुत से लोग वहां पर आने लगे और उनके जो सवाल थे, बाद में भी जो सवाल थे, उन्हें लग रहा था जेल कोई फिल्म है और यही इस जेल की सबसे बड़ी त्रासदी है। ज्यादातर लोग जेल से कुछ चाहते हैं, उन्हें या तो पैसा चाहिए या रिसर्च पेपर चाहिए या कोई और शोहरत चाहिए या फिर कोई पहचान चाहिए या फिर उनका कोई अपना जेल के अंदर है इसलिए भी जेल चाहिए। मैं जेल के अंदर कुछ चाहने के लिए नहीं जाती, मैं जेल के अंदर सिर्फ इसलिए जाती हूँ और वहां से लौटकर भी इसलिए आती हूँ कि जेल एक ऐसी जगह है जहां हमें कुछ देना है और देने के लिए जेल का रेडियो मुझे बड़ा सशक्त माध्यम लगता है। आप अगर YouTube पर सर्च करेंगे तो पानीपत जेल रेडियो के नाम पर उसमें आपको कशिश मिलेगा, हिसार की जेल में जाएंगे तो जितेंद्र मिलेगा, करनाल की जेल में जाएंगे तो सोनिया मिलेगी, आप अगर जाएंगे सोनीपत की जेल में तो वहां कुलमीत मिलेगा। ऐसे बहुत से बंदी मिलेंगे जो कोई स्टार नहीं है, उनके बारे में बाहर के लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने शानदार काम किया। नंबर मैं निकालूं क्या? बनाऊं? एक और परिस्थिति है जिससे मेरा अक्सर सामना, हमने अभी तक अपने YouTube वीडियोस और पॉडकास्ट को पब्लिक डोमेन में लोगों के बीच प्रसारित नहीं किया, लेकिन जो लोग उसे सुन भी लेते हैं चलते फिरते, मुझसे बहुत सारे PhD स्कॉलर्स मुझसे बात करते हैं, कई यूनिवर्सिटीज के बात करते हैं, लेकिन किसी की दिलचस्पी ऐसी कभी नहीं होती कि वो किसी बंदी के लिए 2 अक्षर लिखते, क्योंकि उन्हें शायद लगता है कि बंदी पढ़ लेगा अपनी तारीफ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो बनारस सर, इस पूरे का सार ये निकला कि जेल एक ऐसी जगह है जहां पर धीमे धीमे हर रोज बहुत सारा काम करने की जरूरत है और इसलिए जरूरत है क्योंकि इन्हीं लोगों को जेल से लौटकर वापस इसी दुनिया में आना है और उनको उनकी जिंदगी में बदलाव आए, उसमें ये माइक्रोफोन बहुत बड़ी ताकत के तौर पर उभरा है। बाहर की दुनिया अगर सिर्फ इतना कर ले कि वो उन्हें तंग ना करे, परेशान ना करे, और अगर कोशिश करे तो थोड़ा बहुत कभी कभी प्रोत्साहित कर दे, और अगर वो ना भी करे तो भी चुपचाप बैठे तो भी बहुत, बस अंदर के लोग अपने जीवन को बदलाव लाने की कोशिश करते रहें, उसके लिए रेडियो ने एक बड़ा और भी काम किया है। जेल का रेडियो बाहर के लोग नहीं सुन सकते और ये हमने जानबूझकर इस फैसले को लिया है, क्योंकि बाहर के लोगों की अगर उनमें रुचि नहीं है तो उनको भी समझना चाहिए कि अंदर के लोगों की भी उनमें कोई रुचि नहीं। अगर बाहर के लोगों के मन में किसी बंदी के लिए कोई सम्मान नहीं है तो ये भी उन्हें समझना चाहिए कि बंदियों के लिए भी, बंदियों के मन में भी उनके लिए कोई सम्मान नहीं। लेकिन हमें एक रास्ता बनाना है और तिनका तिनका उसी पुल को, उसी रास्ते को बनाने का काम कर रहा है। तो ये बंदी जब मिलते हैं एक न्यूज रूम की मीटिंग की तरह, तो कभी कोई स्टोरी लिखता है, कोई गाना लिखता है, कोई कविता लिखता है, कोई अपना नैरेटिव बनाता है और फिर वो सुनाते हैं कि हमने ये किया, और धीरे धीरे उनकी आवाजों का संसार फैलने लगता है। कशिश के बारे में मुझे याद है, जब वो जेल में था तो वो कहता था कि मेरे आसपास के लोग मेरी माँ से अब बात नहीं करते क्योंकि मैं जेल में आता।
लेकिन जब उसका पहला गाना रिलीज हुआ तो उसने अपनी माँ को फोन पर बताया, उसकी माँ ने यूट्यूब पर सुना, माँ ने आसपास के 2-4 लोगों को बताया और धीरे धीरे परसेप्शंस बदलने लगे। कशिश जब जेल से छूटा तो उसने बताया कि उसे मोहल्ले में बाद में जब वो गया तो उसे किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि कई लोगों ने उसे आकर कहा कि कशिश, तुमने तो जेल में कमाल का काम किया, हमें तो पहले पता ही नहीं था कि तुम अच्छा गा भी सकते। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि रेडियो ने आजादी के दौर में, आजादी के बाद बाहर की दुनिया को भरपूर एंटरटेन किया है। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर ने देश के जन सेवा प्रसारक के तौर पर जो भूमिका निभाई है वो भूमिका कमाल की है। आकाशवाणी की तुलना में कोई भी प्राइवेट चैनल ना खड़ा हो पाया है ना खड़ा हो पाएगा, क्योंकि आकाशवाणी ने बहुत ही सुंदर और साफ नीयत के साथ काम किया। जेल का रेडियो आकाशवाणी जैसा विस्तृत नहीं है, उसका हिस्सा एक छोटा सा है, लेकिन उसकी नीयत का विस्तार जबरदस्त। ये रेडियो भी ऐसा है जिसके साथ कमर्शियल कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं है, इसमें विज्ञापन नहीं आते, इसमें नेता अभिनेता नहीं दिखते, इसमें तो सिर्फ जेल के लोग हैं। लेकिन सुनिए और सोचिए कि सिर्फ आवाजों के जरिए, जहां कोई कमर्शियल इंटरेस्ट किसी का बंद नहीं पाया, वहां पर ये रेडियो क्या कमाल का काम कर रहा है। इस रेडियो ने लोगों को एग्रेशन, डिप्रेशन, सेल्फ हार्म, इन सब से बचाया है। उसने उन्हें क्रिएटिव बनाया है, उसने उन्हें एक सुबह दी है, एक शाम दी है, और सुबह और शाम के बीच में क्रिएटिव काम करने की आजादी दी, उन्हें खुशी और सुख दी है, और उन्हें ये विश्वास दिया है कि जेल के बाहर उनकी एक और जिंदगी हो सकती है, और ये विश्वास भी दिया है कि बाहर के लोग उनके बारे में जो भी सोचें, अंदर बैठकर वो एक स्किल को सीख रहे हैं, वो अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं। उन्हें अब टाइम को काटना नहीं है, उन्हें अब टाइम को अच्छे तरीके से उसका सदुपयोग करना है। तो आकाशवाणी ने इस देश को जो दिया, उसे आज भी बहुत से भारतीय समझ नहीं पाए। अगर आकाशवाणी नहीं होता तो शायद हमारी जिंदगियों में सुकून नहीं होता, क्योंकि टेलीविजन ने हमें सुकून नहीं दिया। टेलीविजन ने हमें शोर और बहुत ही अशांति दी हुई है। टेलीविजन ने हमें समाचारों का बड़ा संसार तो दिया, लेकिन उसने हमें कुछ ऐसा नहीं दिया जो हमें मल्टीटास्क करने की अनुमति भी दी, और जो हमें ये भी बता सके कि हम एक सकारात्मक दुनिया से जुड़े हैं। आकाशवाणी ने जो सुकून दिया, उसी सुकून का एक छोटा हिस्सा है जेल का रेडियो। मुझे इतना ही कहना। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत आभार। माइक्रोफोन का प्रयोग किस प्रकार एक ताकत के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और जेल की उन बंद दीवारों के बीच में कहीं जीवन के प्रति निराश हो चुके उन कैदियों की भावनाओं को समझने का आपने जो अद्भुत प्रयास किया, और किस तरह उनके अंदर निहित जो क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, उसको जागृत करके उन्हें मुख्य धारा के साथ जोड़ने का जो ये आपका प्रयास है, निश्चय ही अद्भुत है। और आपने जिन चरित्रों की सांकेतिक रूप में चर्चा की, वे चरित्र किस तरह से उनके मन में आत्मविश्वास का संचार, किस तरह से जीवन की जो नकारात्मकता है उससे निकल करके वो बाहर आए, बाहर की दुनिया से कोई संवाद संपर्क नहीं, अपनी छोटी सी दुनिया में रहते हुए हम अपने छोटे छोटे लेकिन नित्य नए नवाचारों के माध्यम से यदि कुछ करने की ठान लें, तो मुझे लगता है कि वो हमारे जो लक्ष्य है, इन कैदियों को सुधारने का, मुख्य धारा में लाने का, जो हम केवल दंडात्मक प्रावधानों के माध्यम से नहीं कर सकते, वो आपने इन छोटे लेकिन महत्वपूर्ण प्रयासों के माध्यम से किया। निश्चय ही आप साधुवाद के पात्र हैं, और आपकी जो यात्रा है वो इसी प्रकार से चलती रहे, और देश के हजार हजार उन कैदियों को आप ऐसा मार्ग बता सके जहां वो अपने जीवन में कहीं एक बदलाव की आहट महसूस कर सके। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपके इस यात्रा के लिए। और कुछ सवाल होंगे तो अपन इसको फिर आगे लेंगे।
और मैं अब आज के जो हमारे तीसरे वक्ता हैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, डॉक्टर प्रियंका कटारिया, जो लगभग 2 दशक से आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ एंकर के रूप में जुड़ी हुई है। और मेरा पहला परिचय उनसे दूरदर्शन के ही एक ऐसे कार्यक्रम में, साहित्यिक कार्यक्रम में दिल्ली दूरदर्शन के वहां हुआ था। और पिछले 2 दशक से उनके उन प्रसारण संबंधी गतिविधियों का, अकादमिक गतिविधियों का एक दृष्टा रहा हूँ। वर्तमान में आप गुरुग्राम यूनिवर्सिटी वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में अध्यापन कर रही है। इसके पूर्व आपने एसडीटी यूनिवर्सिटी और इग्नू में मीडिया कंसल्टेंट के रूप में काम किया। कुछ पत्र पत्रिकाओं के साथ भी आपका जुड़ाव रहा, लेकिन अपना जो प्रसारण का करियर है, जर्नलिस्टिक करियर है, वो आपने शुरू किया ईटीवी के साथ हैदराबाद में। उन्होंने वहाँ ट्रेनिंग ली और वहाँ राजस्थान का जो उनका चैनल था उसको एक तरह से आपने संभाला था। पिछले 8 वर्षों से आप ये जो गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता दिवस है, यहाँ की जो परेड है, जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इसकी भी आप नियमित रूप से कमेंट्री करती रही हैं। समय समय पर संस्थानों की ओर से आपको पुरस्कृत भी किया गया है। मैं डॉक्टर प्रियंका से अनुरोध करूंगा कि ये जो 2 दशक का आपका अनुभव, अनेक युवाओं की इच्छा होती है इन माध्यमों से जुड़ने की, और आपने जिस तरह से अनेक सेलिब्रिटीज को, साहित्यकारों को इसके माध्यम से इंटरव्यू किया और उनके कृतित्व को, उनकी रचनाधर्मिता को अपने दर्शकों और श्रोताओं के सामने लाने का आपने जो ये प्रयास किया, अपने उन अनुभवों को लेकर के आज के इस अवसर पर आकाशवाणी के बारे में या रेडियो के बारे में जो कुछ आप महसूस कर रही हैं वो हमारे साथ साझा करें, डॉक्टर प्रियंका कटारिया। सर्वप्रथम तो आप सभी विद्वानों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और एक बार पुनः आप सभी को वर्ल्ड रेडियो डे पर बहुत बहुत बधाई। वर्तिका जी और राजीव सर, आप लोगों के होते हुए कुछ कह पाना मेरे लिए बहुत ऐसी बात होगी जो मैं एक्सप्रेशन नहीं कर सकती, क्योंकि वर्तिका मैम तो शुरू से ही मेरी एक रोल मॉडल रही हैं। वर्ष 2003 में जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में मेरी फर्स्ट मीडिया वर्कशॉप थी, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर की, तब मैम को पहली बार सुना और जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आया कि एक ऐसा इंसान जो देखने में बहुत ही आम सा है, लेकिन जब वो कुछ बोल रही थी, उनके जो शब्द थे वो तीरों की तरह लग रहे थे, और तीर भी कैसे, जो सीधा दिल पे जाएं। उसके बाद आईएमसी और लोकसभा और उसके बाद ना जाने कितने ही मंचों पर वर्तिका मैम से मुलाकात हुई, उनकी बातें हमें जानने को मिली, उनकी पुस्तकें हमने पढ़ी, तिनका तिनका सीरीज भी हमने बहुत मंचों पर उसके बारे में जाना। जैनेंद्र सर हैं, उनके माध्यम से भी आकाशवाणी में रावत सर हैं, और राजीव सर, आपको मैंने सिर्फ सुना है, आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपको देख पा रही हूँ। और यही हमारा ये जो कम्युनिकेशन का जो हमारे जो ये एक संचार का जो माध्यम है, वो इतना खूबसूरत है कि वो लोगों को आपस में जोड़ देता है। जिनकी हम पुस्तकें पढ़ते हैं, जिनको हम टीवी पे देखते हैं या रेडियो पे सिर्फ सुनते हैं, वो उनको आपस में जोड़ना, ये जो रेडियो है, टेलीविजन है या प्रिंट जर्नलिज्म है, ये आपस में संबंध स्थापित करते हैं। और कहीं ना कहीं जब पुनः उन्हीं व्यक्तित्व से हमारी भेंट होती है, तो गाहे बगाहे हम अपनी यादों के पिटारे से बहुत सारी चीजें सामने लाते हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड रेडियो डे की, तो आकाशवाणी से मेरा जुड़ाव 2009 से रहा है, और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आकाशवाणी से जुड़े और युगवाणी के बारे में ना जानता हो। हम सभी युवाओं की जो प्रथम शुरुआत आप कह सकते हैं, पहला कदम जो हम युवाणी से रखते हैं। कॉलेज के दिनों में जो बहुत अच्छा बोलता था, रेडियो पे हम लोग अपनी बात रखेंगे, हम अनाउंसर बनेंगे और हम कमेंटेटर बनेंगे, ये एक विजन लेके हर युवा चलता है। तो मेरा सौभाग्य रहा कि जब मैं युगवाणी में गई, वहां मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरी आवाज को वहां पर वो तवज्जो दी गई जो मैं चाह रही थी। धीरे धीरे सफर आगे बढ़ा, और सफर इतना आगे बढ़ा कि अब फोन इन लाइव या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 के माध्यम से रावत सर जैसे वरिष्ठ व्यक्ति के साथ, जैनेंद्र जी के साथ कार्य करने का मुझे अनुभव प्राप्त हुआ। और अभी इन दिनों इन सभी प्लेटफॉर्म के जरिए हम अपने देश और समाज को वो सारी चीजें
पहुंचा पा रहे हैं रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, जो हमें पहुंचाने चाहिए। मैं बात कर रही हूं उन शब्दों की महत्ता की जो हमारा समाज कहीं खोता जा रहा है। अगर हम बात करें डिजिटल युग की, एआई की, तो हम देख पा रहे हैं कि वो शब्द कहीं गुम हो गए हैं। वो शब्द जो सिर्फ सुनाई देते थे और हम एक विजन क्रिएट कर लेते थे उस माहौल के लिए। चाहे हम बात करें पहले जमाने में की जाने वाली क्रिकेट कमेंट्री की, या हम बात करें सुरों के किसी भी कार्यक्रम की, या हम पुराने कमेंटेटर की बात करते हैं, या हम न्यूज की बात करते हैं रेडियो से जुड़ी हुई, तो हम पाते हैं कि हमारा जुड़ाव दिन पे दिन उन लोगों के साथ बढ़ता चला गया, क्योंकि नई चीजों ने हमें वो प्राथमिक सहूलियत दी ही नहीं जो हमें आकाशवाणी जैसे रेडियो के जो माध्यम है उनसे मिली। आज के समय में अगर हम बात करें तो शब्दों से खेलना एक आम बात हो गई है किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म पर आज भी आकाशवाणी के जो शब्द हैं वो बड़े संयमित हैं। हर वक्ता बोलने से पहले अपने शब्दों पर कार्य करता है। स, श, ह, की, बड़ी की, छोटी की, हर मात्रा, हर शब्द पर उनकी बहुत पुरजोर पकड़ है, और हर शब्द एक मायने रखता है। और आकाशवाणी के माध्यम से जब वो श्रोताओं तक पहुंचता है तो कहीं ना कहीं आज भी वो दिल को छू जाता है। युवाणी के बाद बात करते हैं इग्नू की, क्योंकि मैंने इग्नू में काम किया है, तो वहां से FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर ज्ञानवाणी आज भी उसका जो है प्रसारण हो रहा है। श्रोता उसको बड़ी तहे दिल से सुनते हैं, क्योंकि उसमें जो कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं, माफ कीजिएगा दूरदर्शन में काम करती हूँ तो दिखाए और सुनाए गए शब्दों का तालमेल चलता रहता है। तो ज्ञानवाणी के माध्यम से किस प्रकार शिक्षा के उच्चतर स्तर को हम प्राप्त कर सकते हैं, और घर बैठे हम अपने जो अध्यापक हैं उनसे किस प्रकार जुड़ सकते हैं, वो हमने देखा। और आज की अगर मैं बात करती हूँ आज की भी, तो सुबह 6 बजे से कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाती है। जैसे कुछ कार्यक्रम जो आज के ही अभी रेडियो पे आज सुबह से आए हैं या आने वाले हैं, उनकी अगर मैं जानकारी आपको बताऊं तो आप नाम सुनिए और उनके कार्यों को देखेंगे। जैसे कि अर्पण जो सुबह 6:10 पर आता है, जिसमें भक्ति संगीत और प्रेरणादायक विचारों को सुनाया जाता है। आप सुबह का रेडियो जब 6:10 पर ऑन करेंगे तो भक्ति संगीत के साथ अध्यात्म की ओर जुड़ता हुआ, और जो वक्ता बोल रहा है उसकी वाणी से आप उस मेडिटेशन वाली दुनिया में अपने आप को पाते हैं। तो यह खूबसूरती है आकाशवाणी रेडियो की, जो संचालित करते हैं जो कमेंटेटर है, उनके शब्दों की पावर है, और उनके प्रोग्राम के नाम और जिस प्रकार से उनका प्रसारण होता है, वो ऑन एयर जाते हैं। उनकी खूबसूरती का बखान मैं इसलिए भी कर पा रही हूँ कि बहुत सारे प्रोग्राम के साथ मैं खुद जुड़ी हुई रही, जैसे कि फोन इन लाइव। जब फोन इन लाइव में हम लाइवली लोगों के साथ फोन पे इंटरेक्ट होते हैं, तब हमें पता चलता है कि कितनी शिद्दत से वो पूरे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। एक एक नाम उन्होंने रटे हुए हैं कि उनको क्या बोलना है। मतलब कहने का ये है कि हम वक्ता जब हम कमेंटेटर जाते हैं, एक एक शब्दों पर हमारी कमांड होती है, हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, उस पे हम संयम रखते हैं, जो आज कहीं हमें अपनी सोसाइटी में देखने को नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, आकाशवाणी में आने वाली जो समाचार हैं, जब आप उनको सुनते हैं तो समाचारों से एक जुड़ाव आपको महसूस होता है। जो भी कमेंटेटर समाचार का वाचन कर रहे हैं, आप शिद्दत से उन समाचारों से अपने आप को जुड़ा पाते हैं। तो ये खूबसूरती है रेडियो की कि वाणी के द्वारा हम वो पिक्चराइजेशन आज भी कर पा रहे हैं। आप बात कर लीजिए मन की बात की, फोन इन लाइव की, पोक्स बॉक्स नंबर 111 की, या 26 जनवरी की स्पॉट कमेंट्री की। आप यकीन मानिए कि केवल स्पॉट कमेंट्री करते समय हम लोग अपने वाणी पर इतना ध्यान देते हैं कि तमाम लोग जो साक्षात रूप में हमारे सामने खड़े हुए हैं, उनकी तालियों की गड़गड़ाहट जब होती है परेड के बाद, तो दिल को ये सुकून होता है कि हर किसी व्यक्ति ने हमें सुना। चाहे भीड़ बहुत हो, चाहे बहुत परेशानियां हो उनको खड़े होने में, लेकिन वो हमें सुन रहे हैं। और बाद में आके जब वो बताते हैं हमें कि आपके एक एक शब्द को हमने सुना, आप कहाँ से इतने अच्छे शब्दों को चुन के लेके आए हैं, आपने बहुत अच्छी जो कमेंट्री है वो की है, तो लगता है कि लोगों का जुड़ाव, और उसमें खासकर पुराने लोग ज्यादा होते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए वहां पर जो बच्चे भी खड़े होते हैं ना,
तो वो भी हमसे कहते हैं कि हम भी रेडियो पर जाना चाहते हैं, हम भी ऐसे ही माइक पे बोलना चाहते हैं। बहुत ज्यादा मैं इस विषय पर आप लोगों के होते हुए नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन जो एक छोटी सी जर्नी मैंने आपको बताई जहां मैंने काम किया, उसके बाद यकीन मानिए कि लोगों के साथ ऐसा जुड़ाव रहा कि अगर सिर्फ वो मुझे फोन पर सुन लेते हैं तो उन्हें वो प्रोग्राम याद आ जाते हैं। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी अपने वजूद को जब कोई भी व्यक्ति आईने की तरह स्पष्ट देखता है और केवल अपने कार्यों के द्वारा, तो बहुत बहुत बेहद खुशी होती है। और ऐसा ही सुकून मुझे मिलता है अपने हर प्रोग्राम के बाद, जब कोई भी जो श्रोता है, सुनने वाला है, वो दोबारा से कॉल करता है और कहता है कि आज का जो आपका प्रोग्राम है बहुत अच्छा गया, हमें आपकी ना केवल आवाज पसंद आई है, हमें आपका प्रोग्राम पसंद आया है, मतलब आपके जो शब्द हैं वो दिल को छू रहे हैं। तो ये खूबसूरती है हमारे रेडियो की, हमारे आकाशवाणी की, जो ताउम्र ऐसे ही चलती रहे दिल की। और हमारे मेरे पूरे मन से यही, शिद्दत से मेरी यही मनोकामना है। और राजीव सर, वर्तिका मैम, आप लोगों के समक्ष बैठ पाना, आपके साथ ये मंच साझा करना, और भानावत सर, आपने जो हमें दिशा दिखाई, उस दिशा पर हम लगातार चल रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ा मैं कहती हूँ कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। और यही सौभाग्य मैं आने वाली अपनी जनरेशन्स को, जिनको मैं अध्यापक के रूप में पढ़ा रही हूँ, बताना चाहती हूँ रेडियो दूरदर्शन से कैसे वो जुड़े और आज भी जाकर जुड़ सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम है जिनसे वो जुड़ सकते हैं, ताकि हमारा जो भविष्य इस फूहड़ता को लेकर चल रहा है, हमारी जो जनरेशन है इस फूहड़ता को अपना रही है, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक पे तो चलिए फिर भी कुछ चीजें सामान्य रहती हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे जो रील्स वगैरह चलती हैं, उस फूहड़ता से अपने आप को कैसे बचाए। और आज के जमाने में जहां माता पिता को लेकर ऐसे व्यंग किए जा रहे हैं, जिससे पूरा समाज उनके खिलाफ खड़ा होने की ताकत रखता है, ऐसे में मेरे जो युवा बच्चे हैं, उनको मैं इन चीजों से जोड़ सकूं और आप लोगों के सानिध्य में रहकर और बहुत कुछ सीख सकूं, ये मेरे लिए बहुत ही एक सौभाग्य की बात है। बहुत ज्यादा ना कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत आभार, कि जो भी मेरी यात्रा रही, जितनी भी मेरी यात्रा रही, शायद आप समझ पाएंगे कि मन के भाव इतने हैं कि कई बार मन के भावों को शब्द नहीं मिलते, लेकिन सामने वाला जिस प्रकार सम्मान देता है, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। तो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी छोटी सी यात्रा जो रेडियो में रही, और आज मैं इस काबिल बनी कि वर्ल्ड रेडियो डे पे अपने शब्द रख सकूं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आभार अपने अनुभव हम सभी के साथ साझा करने के लिए। निश्चय ही आकाशवाणी ने हजारों लोगों के मन में अपनी जगह बनाई है, अपनी प्रतिष्ठा बनाई है, अपनी पैठ बनाई है। और आज भी जब युवक युवतियां अपना ब्रॉडकास्टिंग में करियर शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आकाशवाणी की ओर ही वो देखते हैं। आकाशवाणी ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव एक तरह से लाने की कोशिश की है। बहुत बहुत आभार, आपने अपने उस रोमांच और रोचक यात्रा को हमारे साथ साझा किया। और अब समय है प्रश्नोत्तर का, लेकिन उसके पहले मैं एक बार फिर प्रियंका सिंह से कि वे जो हमारे माननीय आज के विशिष्ट वक्ता हैं, इनको एक सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन का और मेमेंटो, ये सर्टिफिकेट और मेमेंटो हालांकि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हमारा पर्पस सिर्फ यही है कि कम से कम इस बहाने जब भी कभी उनका ध्यान इन सर्टिफिकेट्स और मेमेंटो पे जाएगा, क्योंकि जमाना अब वर्चुअल मीडियम की ओर आ गया है और अब आने वाला समय तो शायद यही है ना। अब तो एआई यूनिवर्सिटीज की कल्पना की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने तो घोषणा भी कर दी है कि बहुत जल्दी एआई यूनिवर्सिटी आ जाएगी। तो ऐसे दौर में ये जो ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटोज है, उनकी भी मुझे लगता है कि अपनी एक महत्ता है। तो आज की शाम के इस याद में, आज के दिन की इन स्मृति में मैं आपसे अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से कि वे हमारे अतिथियों के सम्मान में वो ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो भेंट करें, और ये हम आपको व्हाट्सएप पर भिजवा देंगे। जी, ये प्रियंका जी बीच में और ये क्या आ रहा है? ये पूरा क्लियर नहीं आ रहा है। ये लेफ्ट साइड के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ आ रहा है कुछ, या तो इसको आप एनलार्ज करें इस पे स्क्रीन पे। मैम फाइल ओपन करनी है आपको। यस, हियर।
पुष्पेंद्र जी, आपके पास एक्सेस है तो आप देख लीजिए, जो भी जिनसे भी हो पाए। बिल्कुल सर, 1 मिनट बस। ये सब तकनीकी समस्याएं हैं, कई बार जूझना पड़ता है। हाँ, डिसअपियर हो गया वापस। डॉक्टर प्रियंका कटारिया का बहुत बहुत आभार सर, वाकई बहुत खूबसूरत है। बहुत बहुत आभार शुक्ला जी। जी, थैंक यू, बिल्कुल थैंक यू धन्यवाद, बहुत सुंदर है हमारी वाकई। ओर जी से जी, बहुत सुंदर। ये थैंक यू सो मच सर। आपने हमें बहुत अच्छे से हिस्ट्री ऑफ रेडियो के बारे में बताया, मैम ने हमें पावर ऑफ रेडियो के बारे में बताया, और इसके अलावा मैम ने हमें पावर ऑफ बार्स के बारे में बताया। बिहाइंड द बार्स भी लोग इतने अच्छे तरीके से खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब वर्तिका मैम, यू डिड अ ग्रेट जॉब एंड यू आर अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये थैंक यू सो मच प्रियंका मैम। ई सर्टिफिकेट राजीव जी का, वर्तिका जी के रह गए शायद अभी। नहीं सर, दिस इज इट। शुक्रिया सर, थैंक यू। वर्तिका जी का रह गया मेरे ख्याल सर्टिफिकेट और इमीमेंटो। सर दिस इज फॉर वर्तिका मैम, ई सर्टिफिकेट, and शुक्रिया here सर, is the शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। चलिए, ये सत्र चर्चा के लिए खुला है। करीब 44 पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने देश के अलग अलग अंचलों से हमें ज्वाइन किया है। किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई ऑब्जर्वेशन है तो आमंत्रित है। जी, बहुत प्रणाम करता हूँ माननीय प्रोफेसर संजीव भानावत सर। आज विश्व रेडियो दिवस पर आपने जो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम किया उसके लिए बहुत बधाई आपको। और 3 अतिथि व्याख्यान हुए, माननीय डॉक्टर शुक्ला जी जो एडीपी रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो के, और उनके साथ थोड़े दिन काम करने का मौका मिला। हमारा डॉक्टर वर्तिका नंदा जी और अभी डॉक्टर प्रियंका कटारिया जी ने अपना उद्बोधन दिया। आज मैं एक और कार्यक्रम में जुड़ा था जो दिन में आयोजित था, और वो नॉर्थ ईस्ट रेडियो। नॉर्थ ईस्ट में हमारे माननीय राजीव शुक्ला जी को याद होगा, हमारे इंजीनियर आशीष भटनागर जी हैं जो नॉर्थ ईस्ट में हैं, और वहाँ पर वो उप महानिदेशक हैं इंजीनियरिंग के, और पूरे नॉर्थ ईस्ट में रेडियो को लेकर एक मूवमेंट चला रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा व्याख्यान हुआ। 1-2 प्रश्न है। अब राजीव जी चूंकि वहां पर रहे हैं, एडीपी पॉलिसी रहे हैं और कई जगह रहे हैं, क्या सुन पा रहे हैं सर? माननीय राजीव शुक्ला। एडीपी नहीं, एडीजी रहा हूँ। एडीजी, हाँ, क्षमा करेंगे। हाँ जी जी, एडीजी रहे हैं। बहुत फर्क नहीं पड़ता। अब जो भी था रहा हूँ, आज की तारीख में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये डॉक्टर बाला लखेंद्र हैं, और जहाँ से आपने डॉक्टर बाला लखेंद्र मैं जानता हूँ, पढ़ा रहे हैं वहीं पर, अभी बीएचयू में पढ़ा रहे हैं। भानावत जी मैं जानता हूँ, ये मुझे बीएचयू में, ये मेरे जैसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं गुरु भाई हैं। ये बीएचयू में जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में से मेरी भेंट हो चुकी है। वहां भी मैं कुछ पढ़ाने गया था, तो इनके दर्शन हुए थे और बातचीत हुई थी। जी बिल्कुल जानता हूँ इनको। आप तो बलदेव राज जी गुप्ता रहे के बच्चे साहब के स्टूडेंट रहे। जी हाँ, मैं बलदेव राज गुप्ता जी का और प्रोफेसर अंजन कुमार बैनर्जी और आजमी साहब, ये 3 दिग्गज होते थे, बाकी गेस्ट फैकल्टी बहुत लोग आते थे। ये तीनों दिग्गज हमारे मित्र रहे हैं, तो बनर्जी साहब तो नहीं रहे। जी हाँ बालाजी पूछिए। जी सर, आपने तो एक बहुत राष्ट्रीय कार्यक्रम किया था स्वतंत्रता भवन में, कवि गोष्ठी सर्वभाषा कवि सम्मेलन, वो भी याद है मुझे। मेरा प्रश्न ये है, अभी पिछले दिनों जब मैं आकाशवाणी दरभंगा गया था, आकाशवाणी ओबरा गया, आकाशवाणी सासाराम गया, तो अभी जो चीजें बदल रही है, अभी वर्तिका जी ने बहुत अच्छा कहा रेडियो के बारे में। वो जेल रेडियो की बात कर रहे थे और उन्होंने
कहा कि हमें उन्हें शामिल करना चाहिए, उनके दुख दर्द को सुनना चाहिए। और अभी प्रियंका जी अभिभूत थी कि उन्होंने रेडियो पे काम किया है 2009 से, और वो अभी, लेकिन अभी जो एक फ्रेंड आया है सर, जो अभी मैं आकाशवाणी दरभंगा में मुझे पता चला कि वो सारे स्टेशन को, जो स्थानीय रेडियो हैं जिनको LRS या फिर उनको बंद करने की योजना है, और कई केंद्र बंद किए जा चुके हैं, और वहां पर वो दिल्ली से जो प्रसारित करेंगे वही लोग सुनेंगे। तो अब जब हम स्थानीय रेडियो की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी रेडियो की बात कर रहे हैं, सामुदायिक विकास की बात कर रहे हैं, और रेडियो की जो शुरुआत हुई सर, उसमें बीच के दिनों में हमने स्थानीय भाषाओं के विकास की बात की। तो आज जब हम ये सारी चीजें बदल रहे हैं टेक्नोलॉजी के नाम पर, जब हम उसे सीधे आकाशवाणी पटना रिले कर देंगे या फिर दिल्ली से रिले कर देंगे, तो ऐसे में स्थानीय भाषाओं का क्या होगा सर, या उन रेडियो आकाशवाणी का क्या होगा जो इस आशा के साथ आरंभ हुआ था कि हमारे देश की संकल्पना बढ़ेगी, हम जन सामान्य को सुनेंगे, हमारा हर व्यक्ति उसमें शामिल होगा। तो मेरा एक दुख भी है और एक प्रश्न भी है कि आज विश्व रेडियो पर आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। माननीय राजीव शुक्ल जी और बाकी जो हमारे अतिथि हैं वो भी अपनी बात रख सकते हैं। रेडियो में जो परिवर्तन हो रहा है, हमें किस दिशा की ओर ले जाने की योजना है? डॉक्टर बालाजी, बहुत अच्छा लगा कि आपने बात छेड़ी। मैंने आपको गुरु भाई कहा था, सच पूछे तो आप तो गुरु हैं, क्योंकि VHU की में आप जर्नलिज्म में पढ़ा रहे हैं, तो जो भी वहाँ पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने पढ़ाया और जो आज पढ़ा रहे हैं, वो हमारे लिए तो गुरु ही हैं। तो आप भी हमारे लिए गुरुजन हैं, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने ये प्रश्न उठाया। आपने मेरे बहुत दिल की बात कही बालाजी। असल क्या है, ये एक अभी हाल में संयोग से मैंने इस विषय पर कई मंचों पर बातचीत की है। देखिए, आप मुझे यहाँ अनुभव सुनाए गए, मुझे वही चिंता थी कि समय की सीमा में अनुभवों में कितना जाया जाए, क्योंकि इतनी लंबी और इतनी वैविध्य भरी यात्रा है कि मैं आदिवासी अंचलों में बहुत मैंने काम किया है। मैं एक बहुत संक्षेप में बता सकता हूँ कि बस्तर जो छत्तीसगढ़ में अब है, उसमें मध्य प्रदेश में ही था, वहाँ हम लोग एक बार कहीं जाना चाहते थे और हम रास्ता भूल गए थे, और हमारे साथ एक अनाउंसर होते थे, आकाशवाणी जगदलपुर उसका केंद्र था, MA रहीम, उनका हमको हम लोग भाईजान कहते थे। तो रहीम साहब थे, मैं था और एक ड्राइवर महोदय थे, और हम लोग रास्ता भूल गए, और हमारे कुछ अतिथि आकर जा चुके थे। हम लोग बहुत परेशान थे कि हम कैसे पहुंचे। शाम हो गई थी। आदिवासी अंचलों में गांव जो है बहुत घने बसे नहीं होते, दूर दूर होते हैं, और गाड़ी देखकर कई बार लोग सामने आते नहीं। ऐसी स्थिति में हुआ ये कि एक लड़का हमें कहीं गांव के किसी गांव में उसके छोर पे दिखा। स्पष्ट था, मैं यहाँ आप समझ सकते हैं कि ये उस संस्कृति का एक हिस्सा है। वो काफी प्रसन्नचित्त अवस्था में था, यानी आप कह सकते हैं कि शाम को उसने काफी, साफ कहा जाए तो मदिरा पान किया हुआ था, और वो लगभग डोल रहा था खड़े खड़े। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि इससे पूछिए कि वो रास्ता बता सकता है। ड्राइवर ने कहा कि वो क्या बताएगा, आप देख रहे हैं उसकी हालत, देख रहे हैं, वो क्या बता पाएगा। तो मैंने रहीम भाई से कहा कि आप एक बार बात करके देखिए। रहीम भाई गए, पहले उन्होंने उससे हिंदी में पूछा, आपकी बात का संदर्भ में बात करूं, हिंदी में पूछा कि भाई रास्ता बता सकते हो। वो ऐसे ही खड़ा खड़ा झूलता सा, आंखें मिचमिचाता देखता रहा। फिर उन्होंने जो वहां की बोली है हल्बी में उससे पूछा कि जो गांव का नाम था नियारार, जहां हमें जाना था, कि वो बता सकते हो। भानावत जी और वर्तिका जी, आप लोगों सब हमारे साथी हैं, जानते हैं, और बालाजी ने ये सवाल उठाया। वो लड़का कुछ देर झूलता रहा, फिर उसने अपनी ऐसे उंगली सामने की, और उंगली सामने करके बिल्कुल जैसे देखकर उसने कहा, रहीम। और रहीम के आंखों से आंसू निकल पड़े, बोले आज मेरी नौकरी सफल हो गई। एक सुदूर जंगल में, झुटपुटे में, जो बहुत चैतन्य अवस्था में एक लड़का नहीं है, उसने आवाज से पहचान लिया था कि ये रहीम की आवाज है। तो और उसके साथ साथ जो आपने कहा कि ये, तो वो रोमांच मुझे अभी भी मैं याद करता हूँ, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं गूज बम्प्स, तो वो गूज बम्प्स मुझे महसूस होते हैं। मेरे अपने भी बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जब श्रोताओं से मिला। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सच है बालाजी, कि रेडियो की शुरुआत में तो मामला ये था कि आप बहुत दूर तक जा सकते हैं, पर धीरे धीरे जो यात्रा जो हुई, उसमें ये हुआ कि आप अधिक आत्मीय, अधिक स्वजन, अधिक मैत्रीपूर्ण, अधिक घनिष्ठ होते चले गए, अधिक अंतरंग होते चले गए। इसीलिए पूरी वो यात्रा है जिसमें कि स्थानीय रेडियो स्टेशन आकाशवाणी में आए, बड़ी लंबी कतार आई,
80 के दशक में और 90 के दशक में ये सिलसिला आकाशवाणी में चला। और उसके बाद अब जो आपने बहुत सही कहा, हालांकि इसमें भी एक दुख की बात है बालाजी, भारत में जहां इतनी विविधता है वहां कम्युनिटी रेडियो मूवमेंट को कहीं और ज्यादा सघन रूप से सक्सेसफुल होना चाहिए था। हमारे यहाँ अभी हजारों कम्युनिटी रेडियो स्टेशन चाहिए, अभी सैकड़ों तक हम पहुंचे, हमें हजारों होने चाहिए, क्योंकि इतनी हमारे यहाँ विविधता है। मैं अमेरिका में था, मुझे मुझे मैं आपको बता दूं वहां एक अनुभव अपना। जैसे कोई वहां किसी क्षेत्र में कोई स्टेशन काम कर रहा है, 1 घंटे उसमें कोरियाई में कार्यक्रम आता था, 1 घंटे वियतनामी में आता था, 1 घंटे हिंदी में आता था, तो वो कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी को एड्रेस करते थे। भारत में इतनी कम्युनिटीज, इतने संसार बसते हैं जगह जगह, गली गली में, कि वहां इतनी जगह, इतनी इतनी गुंजाइश है। ऐसी स्थिति में जहां तक हम पहुंच गए थे, जिन तमाम भाषाओं बोलियों में हम संवाद कर रहे थे या कर रहे हैं अभी भी, वहां उसको बचाना बहुत जरूरी है। और मैं जो बात कहना चाहता हूं, क्योंकि आज मैं आकाशवाणी की ओर से आपको एक अधिकारी के रूप में उत्तर तो नहीं दे सकता, क्योंकि अब मैं आकाशवाणी के नीति नियंता के रूप में बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि यह हमारी बहुत बड़ी शक्ति रही है। हम देश की 22 जो भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, और अंग्रेजी को 23वीं भाषा मान लीजिए, क्योंकि वो 8वीं अनुसूची में तो नहीं है, भारतीय भाषा नहीं है, और सैकड़ों बोलियां उसमें आकाशवाणी के प्रसारण होते थे, और आज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के भी हो रहे हैं। और यही होना चाहिए, और होना चाहिए। जब मैं पॉलिसी देखता था रेडियो में, तो नॉर्थ ईस्ट में लगातार उत्तर पूर्व भारत से हमारे पास डिमांड आती थी कि इम्फाल से हमें इन बोलियों में और कार्यक्रम चाहिए, कोहिमा से इंडियन बोलियों में और कार्यक्रम चाहिए। और मैं कहता था कि ये हमारे लोकतंत्र के सघन और अधिक सुदृढ़ होने की एक पहचान है, कि जो लोग हैं वो अपना इस आकाश के नीचे, इस धरती पर अपना हक मांग रहे हैं, कि हम भी संवाद करना चाहते हैं। और लोक सेवा प्रसारण की यूनेस्को ने जो शर्तें बताई हैं, जो उसकी जो पहचान बताई है, उसमें से एक ये भी है कि आपके प्रसारण क्षेत्र में जो भी आते हैं, आप उन सबको सम्मिलित करेंगे, किसी भी आधार, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो लिंग हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो सामाजिक रहन सहन हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे आपकी आर्थिक संपन्नता हो या विपन्नता हो, किसी को आप बाहर नहीं कर सकते। यही फर्क आता है जहां निजी रेडियो स्टेशन का, क्योंकि वहां मुख्य उद्देश्य जो है प्रॉफिट मेकिंग होता है, तो उनके ब्रॉडकास्ट में मैं आलोचना नहीं कर रहा, एक तथ्य के रूप में कह रहा हूं, क्योंकि उनको एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के आधार पर अपनी इकोनॉमी चलानी है, तो जो परचेजिंग पावर वाली क्लास है, उसके पास उनके कार्यक्रम उनकी ओर ज्यादा मुखातिब होंगे। जिनको थोड़ा चटपटा चाहिए, जो वर्ता जी कह रही थी कि एक नए ढंग की जो भाषा वहां आप सुन रहे हैं या चीजें देख रहे हैं, वो संस्कार नहीं वहां रहते, तो वो तमाम चीजें जो है वो रहती हैं। तो मुझे लगता है, अब आप कहेंगे कि आपने तो कही पल्ला झाड़ लिया कि मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। दरअसल मैं कहना जो चाहता हूं वो ये है कि देखिए, दुनिया भर में जो सिविल सोसाइटी जिसे हम कहते हैं, उसकी भी एक भूमिका होती है। और मैं इस मंच पर जो बात मैं पहले कई और मंचों पर कह चुका हूं, आज फिर दोहराना चाहता हूं कि हमारे देश में सिविल सोसाइटी ने लोक सेवा प्रसारण, मैं केवल आकाशवाणी का जिक्र नहीं कर रहा, लोक सेवा प्रसारण को बनाए रखने में, बचाए रखने में, बढ़ाने में जो भूमिका निभानी चाहिए थी, अभी तक नहीं निभाई है। एक पूरी आवाज उठनी चाहिए। अभी क्या होता है, मैं देखता हूं, जैसे छतरपुर स्टेशन पर मान लीजिए अगर कुछ कार्यक्रम कम हो गए, तो छतरपुर केंद्र, मध्य प्रदेश का छतरपुर, दिल्ली का छतरपुर नहीं, मध्य प्रदेश में छतरपुर है, तो वहां लोग कहेंगे अरे ये क्या हो गया, फिर हो सकता है कोई जनप्रतिनिधि वहां, लेकिन ये पूरी एक, जिसे अंग्रेजी में ग्राउंड स्वेल कहते हैं, वैसा होना चाहिए कि भाई ये हमारी जबान में, हमारी बोली में, हमारे दुख सुख की बात कहने वाले जो तमाम ये केंद्र हैं, इन्हें होना चाहिए। और इसके लिए व्यवस्था कैसे की जाए, ये सरकारें देखें, जिनके पास सत्ता है इसकी व्यवस्था करें, और इस प्रकार से यह काम आगे बढ़ना चाहिए। मैं अब आखिरी बात इस संदर्भ में एक और कह दूं, जोड़ दूं कि देखिए, बीबीसी जो है वो बहुत हद तक मॉडल रहा। वो एक लोक सेवा प्रसारण के उनके यहाँ आधार भूमि बनाई गई, जो एक बहुत प्रसिद्ध है ना, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट, टू एंटरटेन, सूचना, शिक्षा, मनोरंजन, ये रॉयल चार्टर जो बीबीसी का था उसमें कहा गया। अमेरिका में शुरू से ये हुआ कि नहीं, हम तो प्राइवेट एंटरप्राइज वाले लोग हैं, सरकारी चीजों पर बहुत ध्यान नहीं देते, और प्रॉफिट मेकिंग जो है वो हमारा एक मुद्दा है। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका के अंदर भी 20वीं शताब्दी के लगभग आधे पहुंचते पहुंचते या उसके पहले
ये ध्यान आ गया कि इतने सशक्त माध्यम को आप केवल कुछ लोगों की मुनाफाखोरी के लिए नहीं छोड़ सकते। और वहां एक मूवमेंट शुरू हुआ, जनता का मूवमेंट, जिसने पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को खड़ा किया। आज वहां नेशनल पब्लिक रेडियो NPR, अमेरिका का सबसे सम्मानित रेडियो अगर कोई नेटवर्क है तो NPR है। उसी तरह टेलीविजन भी वहां हुआ, और ये आम लोग वहां हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं और कंट्रीब्यूट करके उन्हें चलाते हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि हमारे देश में भी बहुत बड़ा मध्य वर्ग है, बड़ी हमारी सिविल सोसाइटी है, बहुत ज्ञानी ध्यानी हमारे लोग हैं, जानकार लोग हैं। ये काम होना चाहिए। और सरकार, क्योंकि देखिए सरकारें या सत्ता प्रतिष्ठान कब क्या करते हैं, इस बारे में उनकी ओर से उत्तर हम भला कैसे दे सकते हैं। लेकिन ये है कि हम क्या सही है इसका जिक्र कर सकते हैं, और उसके लिए हमें कहना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। मैं ये बात कह सकता हूँ। मैं आपसे सहमत हूं कि आकाशवाणी को और देश के और तमाम केंद्रों को भी अधिक से अधिक स्थानीय भाषाओं बोलियों में, जमीन से, जंगल से, जड़ से, रोटी पानी से मिली हुई जुड़ी हुई बातें करनी ही चाहिए। वही रेडियो का धर्म है और वही रेडियो का भविष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। साहब, और कोई ऑब्जर्वेशन या सवाल किसी का? चलिए, मुझे Yes, लगता sir. है कि और हाँ जी, हाँ जी, Sir. हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ सुरेंद्र जी। सर नमस्कार। आज गांव में हूँ सर, इंटरनेट बहुत अच्छा नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो बड़ी तमन्ना थी कार्यक्रम को लेकर। और वर्तिका नंदा मैडम का जो वक्तव्य था मैं सुन नहीं पाया, तो वीडियो ये सुविधा है कि हम यूट्यूब पर जाकर उसको दोबारा सुन सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। मैं रहने वाला मेरठ का हूँ और मैं रेडियो पर शोध कर रहा हूँ, और वर्तमान में आकाशवाणी रामपुर का जो स्टेशन है वहां पर कैजुअल अनाउंसर, उसको नया नाम दिया है इन्होंने, ट्रेनी ट्रांसमिशन। तो इस पर कार्य कर रहा हूँ, तो बीच बीच में कार्यक्रम करने का मौका मिलता है वहां पे। तो अभी बातचीत हुई कि किस तरह से कुछ पॉलिसी आई है कि कुछ स्टेशंस को रिले कर दिया जाएगा। तो उसमें 9 स्टेशन ऐसे हैं जो लोकल रेडियो स्टेशन है, LRS है, जिसमें बरेली और नजीबाबाद जैसे 9 स्टेशन की बात हो रही है उसमें। तो मैं इसमें आगे बढ़ना चाहूंगा कि आकाशवाणी का जो रामपुर केंद्र है वो प्राइमरी स्टेशन है, और मैक्सिमम कार्यक्रम वहां से बनाए जाते हैं, और उसके जो क्षेत्र है 8-9 आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं वहां तक उसके कार्यक्रम जाते हैं। यदि हम लोकल कार्यक्रम की बात करें तो सर से अभी बात हो रही थी, मैं बता रहा था कि कुछ हमारे आसपास भी बहुत ऐसी महत्वपूर्ण स्टोरियां मिल जाती हैं जो राष्ट्रीय स्तर तक की मान्यता रखती हैं। तो यहीं हापुड़ के पास गजरोला में एक व्यक्ति हैं, राम बोध, उनके पास रेडियो का एक बड़ा संग्रह है। उनके पास लगभग वो दावा करते हैं कि 1400 प्लस रेडियो सेट का संग्रह उनके पास है। पिछले कुछ साल में, 1-2 साल पहले, उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा रेडियो सेट रखने का रिकॉर्ड बनाया, और उन्हें सर्टिफिकेट जो मिला वो 1257 रेडियो स्टेशंस को जो स्वीकृति मिली, मतलब जो ठीक स्थिति में थे, उनके मानक होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनको वहां पर वो मिला। और एक बड़ी स्टोरी हुई जो प्रधानमंत्री का जो लोकप्रिय कार्यक्रम जाता है मन की बात में भी उसका स्टोरी का जिक्र हुआ। क्योंकि मैं मेरठ से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ तो रेडियो स्टेशन की प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली के जो स्टेशन हैं यहाँ पे सुने जाते हैं। तो और वर्तमान में जब लॉकडाउन हुआ तो एक स्टेशन मेरठ को भी मिला, और यहाँ पर अभी स्टूडियो नहीं बना है, अभी केवल रिले हमारे यहाँ से प्रसारण हो रहा है। और दिल्ली से जो रेनबो है 102.6 वाला जो मेगा हर्ट्स की जो फ्रीक्वेंसी, उसी को रिले करके 101.7 मेगा हर्ट्स पे ये हमारे मेरठ वाले क्षेत्र में ये प्रसारण हो रहा है। और इसके साथ साथ 5 ऐसे स्टेशन हैं जो हमारे CRS हैं, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जिसको लेकर मैडम वर्तिका नंदा मैडम की भी बहुत काम कर रही हैं, इसमें बहुत बधाई की पात्र है मैडम भी। 3 स्टेशन इस यूनिवर्सिटीज के पास हैं, जिसमें चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का CCSU
चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी रेडियो, सुभारती का है आजाद हिंद रेडियो और आईएमटी का है आईएमटी रेडियो। और 2 स्टेशन ऐसे हैं जो वहाँ के एनजीओ वगैरह चला रहे हैं। तो इस तरह से 5 स्टेशन कम्युनिटी रेडियो के और 1 स्टेशन आकाशवाणी का, 6 स्टेशन मेरठ जैसे जिले में रन कर रहे हैं। तो इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है रेडियो की, ऐसा नहीं है। और जहां तक रिले का मामला है, क्योंकि सभी उद्घोषक का भी ग्रुप बना, उनका सभी लोग उस पे अपनी आवाज उठा रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भविष्य में हो सकता है कि इस पे विचार करें सरकारें, और इस तरह की जो रेडियो की जो भूमिका है वो सशक्त हो, आगे बढ़े, ज्यादा लोग उसमें जुड़े। क्योंकि मैं विद्यार्थी रहा, तो इतनी चीजें हम दूर दूर से नहीं सीख पाते हैं जब तक हम इन चीजों का हिस्सा नहीं बनते हैं। तो आकाशवाणी में मुझे का मौका मिला, और बहुत सारी चीजें जब हम ऑन एयर जाते हैं, लाइव प्रोग्राम करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, आउटडोर प्रोग्राम को रिकॉर्ड करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसमें पैनल, अलग अलग कार्यक्रम के अलग अलग पैनल होते हैं, तो बहुत सारे लोगों से सीखने का भी मौका मिलता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोकल टैलेंट है वहाँ का, उसको भी हम मुख्य धारा से जोड़कर उनकी जो महत्वपूर्ण सुरेंद्र स्टोरीज जी, हैं उनको थोड़ा भी सा शॉर्ट, या तो कोई सवाल हो तो बताएं, ऑब्जर्वेशन है, तुम क्या सारी बात आ गई है, कोई और भी सवाल पूछना चाहे, जी क्योंकि जी समय काफी हो गया है अब, है ना? तो कोई सवाल जी। है तो स्ट्रेट पूछ मेरा लीजिए। बस यही सवाल तो मैं अभी नहीं सोच पा रहा हूँ, लेकिन ये है कि ठीक है, रेडियो की अपनी भूमिका है, और बिल्कुल बिल्कुल। बहुत हम्म, हमें उज्जवल भविष्य उसका दिखाई देता है सर। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया सर। और कोई? यस सर, मेरा नमस्कार एक जी। सवाल है सर। हाँ बताइए, नाम सर बताइए और परिचय दीजिए आपका, कौन बोल रहे हैं, कहाँ सर से? मेरा नाम पद्मिनी है। मैं एक पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ दयानंद सागर यूनिवर्सिटी बैंगलोर से। सर सो मेरी हिंदी इतनी अभी अच्छी नहीं है, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट। सर द थिंग इज, मेरा जो पीएचडी का रिसर्च टॉपिक है वो है पॉपुलैरिटी ऑफ बंगाली रेडियो प्लेस। सो सर मैं ड्यूरिंग माय रिसर्च, जैसे मैं अपना रिसर्च कंडक्ट कर रही हूँ, आई वाज ट्राइंग टू सी के और कोई रीजनल लैंग्वेज चैनल्स, even if it is Akashvani, but history tells us कि Akashvani was the first. All India Radio was 1924 में बॉम्बे से simultaneously कैलकाटा और बॉम्बे से रेडियो प्ले स्टार्ट किए गए थे आकाशवाणी में, जब जब तब ऑल इंडिया रेडियो था। तो सर अभी क्यों, जैसे कि मैं बंगाली में देख रही हूँ अपने रिसर्च के थ्रू, बहुत सारे ऐसे प्लेज, रेडियो प्लेज एंड ऑडियो प्लेज बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, सो मच सो के अपने इंडिविजुअल लोगों ने इंडिविजुअल चैनल्स खोल लिए। कम से कम 250 ऐसे चैनल्स है यूट्यूब पे से जो सिर्फ ऑडियो प्लेज, रेडियो प्लेज करते हैं फुल कास्ट के साथ। तो ये चीज इतनी पॉपुलैरिटी क्यों नहीं पा पा रही है इन अदर रीजनल लैंग्वेजेस, इवन इन हिंदी? ऐसा नहीं कि हिंदी में पहले रेडियो प्लेज नहीं होते थे, बहुत होते थे और काफी पॉपुलर भी थे। मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, बट मिल नहीं रहे मुझे। इफ यू कैन, इफ समवन, इतने सारे दिग्गज आए हुए सर, गुरुजन है सारे ऑल इंडिया रेडियो से एंड आकाशवाणी से, तो आप लोग अगर इस पे कुछ अगर आप कुछ लाइट थ्रो कर सकते हैं तो। देखिए, अगर आप मतलब बाकी लोग हमारे साथी बोलना चाहेंगे तो मैं स्वागत है, लेकिन मैं इस मामले में, क्योंकि सब इतने दिन रहा और इतना कुछ किया, उसमें ये भी शामिल है। देखिए, रेडियो पर नाटकों की बड़ी समृद्ध परंपरा है, और आकाशवाणी में संस्कृत नाटकों से लेकर जो संस्कृत क्लासिक हैं, और संस्कृत ही नहीं, अगर आप नाटक की पूरी परंपरा पर जाएं तो जो यूनानी ग्रीक नाटक है, उसके भी महान जो नाटक हैं वो आकाशवाणी से नाट्य रूपांतरण। क्योंकि होता क्या, मैं यहाँ पर हम रेडियो नाटक की विशेषताएं और रंगमंच के नाटक और उसमें क्या भेद होता है, इसमें बहुत ज्यादा विस्तार में जाने की जगह और समय शायद नहीं है। कभी अलग से कोई भानावत जी अगर रेडियो नाटक पर कोई सेशन कराएंगे तो उसमें शायद उस पर हम ज्यादा विस्तार में जा सकते हैं। लेकिन ये हुआ है, और आपने सही कहा, बांग्ला में भी खूब ये हुआ है और दूसरी भारत की भाषाओं में भी हुआ है। आकाशवाणी में सच पूछिए तो एक एनुअल अवार्ड हुआ करते थे, जिसमें कि रेडियो नाटक भी एक श्रेणी थी, जिसमें कि देश भर से स्टेशंस अपने नाटक बनाकर भेजते थे और उनको अवार्ड मिलते थे।
अभी भी आकाशवाणी में नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम होता है। अब बहुत बहुत संक्षेप में बताऊं तो ये है कि एक बहुत दिग्गज साहित्यकार थे, उनका नाम था जगदीश चंद्र माथुर, जिन्होंने जो खुद एक बड़े नाटककार थे और आईसीएस ऑफिसर थे। वो जब डायरेक्टर जनरल बने तो उन्होंने बहुत से काम शुरू किए, उसमें उसमें नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम भी शामिल था। मैं आपको बताऊं कि जो मेरी रेडियो सुनने की सबसे पुरानी स्मृतियां हैं, उसमें संयोग से एक नाटक ही है। 1965 की लड़ाई थी, जब मैं 8 साल का था, भारत पाकिस्तान युद्ध। तो ढोल की पोल नाम से एक रेडियो धारावाहिक आया करता था, जिसमें कि पाकिस्तान रेडियो का एक स्पूफ होता था, मजाक, उस पर आप कह सकते हैं कि व्यंग्य होता था, और उसको लेकर चला। तो उसके बाद मैंने खुद, जब मैं दिल्ली एक टूर पर आया, तो मैंने किशोरों के लिए एक धारावाहिक था दहलीज, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में बहुत दिग्गज कलाकार भी थी, निर्देशक भी थी और प्रोफेसर थी, त्रिपुरारी शर्मा, उन्होंने लिखा था। मैंने खुद बहुत से नाटक बनाए हैं, क्रिएट किए हैं। देखिए, हुआ ये है कि अब आपने जो कहा वो सब कुछ रहा है, लेकिन हाँ ये है कि जब धीरे धीरे एक शिथिलता तो आई है। उस शिथिलता का एक परिणाम ये है, जो आपने कहा, जो बालाजी ने भी सवाल उठाया था कि भाषाएं कम हुई हैं, या भी हमारे मित्र सत्येंद्र जी बता रहे थे कि जैसे मैं आपको बताऊं, एक नया प्रयोग सुनने को मिल रहा है। ये आकाशवाणी, जैसे मैं जबलपुर में अगर वहां लगाता हूं, तो कभी वो जबलपुर कहते हैं, कभी वो कहते हैं ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का जो अनाउंसमेंट है, ये नया अनाउंसमेंट है। इसके कारण पर अगर विवेचना करने बैठेंगे, जिसके सही मंच वाकई ये नहीं है, लेकिन मैं संक्षेप में कह सकता हूं कि जरा स्टाफ की कमी है, कुछ साधनों की कमी है, प्रमोशंस नहीं हुए, एक बिल्कुल अलग कहानी है जिसको कि यहाँ कहने कोई मतलब नहीं है, लेकिन रिक्रूटमेंट वगैरह भी कम रहा है। उन दिक्कतों की वजह से, या और भी आप, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं फिर दोहरा दूं, मैं नीति नियंता नहीं हूं। लेकिन मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि जो आपने बड़ी अच्छी बात कही, मैं आपको आपकी इस बात को आगे बढ़ाकर सभी मित्रों के सामने रखना चाहता हूं कि जो लोग सिर्फ प्राइवेट रेडियो सुनते हैं, वो जान ही नहीं पाते या नहीं समझ पाए हैं कि रेडियो से क्या क्या कुछ हो सकता है और क्या क्या कुछ होता रहा है। रेडियो के नाटक, रेडियो के धारावाहिक, रेडियो के रूपक, डॉक्यूमेंट्रीज, कमाल की डॉक्यूमेंट्रीज हैं। आपको पता है कि सत्यजीत रे ने खुद एक डॉक्यूमेंट्री रविन्द्रनाथ टैगोर की थी, और श्याम बेनेगल जो है, उन्होंने बाद में डॉक्यूमेंट्री, उनकी रेडियो की नहीं थी, और वो सत्यजीत रे में। तो रेडियो पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं। कमेंट्री के बारे में बात अभी हमारी प्रियंका जी ने बताई ही। मैंने भी वो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस किया है, और उन्होंने स्पॉट जो कमेंट्री होती है उस पर उन्होंने हिस्सा लिया है। तो मैं कहना ये संक्षेप में चाहता हूं कि ये तमाम चीजें जो हैं, ये शिथिल हुई हैं बीच में। हाल में एक दौर सा बना है कि अब ये चलता है। आप समझ रहे हैं, यानी कि आज के ऑडियंस को ये पसंद है। तो उसमें मुझे एक याद है कि एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था, उसमें एक प्राइवेट रेडियो के सज्जन ने खड़े होकर कहा कि भारत में रेडियो में पहली बार हमने एक रामायण को नाटक के मार्फत से पेश किया। तो मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा, हुजूर, कोई देश का और दुनिया का क्लासिक नहीं है जो आकाशवाणी ने नाटक के रूप में नहीं प्रेजेंट किया। तो उन्होंने कहा, मैं प्राइवेट रेडियो की बात कर रहा था। और मैंने तब कहा, आपने प्राइवेट अब कहा है, पहले आपने सिर्फ रेडियो कहा था। तो एक दिक्कत ये है कि हमारा एक सामूहिक स्मृति लोप जैसा हो रहा है। आपने बात की, आप रिसर्च कर रही हैं, मैंने जो अपील अभी सिविल सोसाइटी के नाम से की थी, मैं आपसे भी कर रहा हूं। ये तमाम विधाएं जो है, रेडियो की रनिंग कमेंट्री, रेडियो पर रूपक, रेडियो पर नाटक, रेडियो की मैगजीन, रेडियो पर कहानियां, रेडियो पर कविताएं, रेडियो पर कवि गोष्ठी, रेडियो पर संगीत के इतने रूप, शास्त्रीय, लोक, सुगम, ये सब कुछ, इन सबको हमें सुरक्षित करना है और आगे बढ़ाना है। इसमें आप जब इस बारे में आपने रिसर्च की है, आप लिखिए, इस बात को कहिए। रेडियो नाटक की इतनी समृद्ध परंपरा है। मेरा एक लंबा लेख है जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पत्रिका में छपा था रेडियो नाटक के बारे में। उसमें मैंने पूरा विस्तार से वर्णन किया है कि कैसे कैसे नाटक शुरू हुए भारत में, दुनिया में क्या हुआ और यहाँ क्या हुआ। तो खैर, अभी हम उतने विस्तार में उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि इस बारे में सिविल सोसाइटी के लोगों को, हमको, सर, इनकी समस्या मेरी ख्याल ये है कि बंगाली नाटकों के बारे में कोई इनको जानकारी नहीं मिल रही है। नहीं सर, जब भी, हाँ, नहीं सर, ये राजीव जी सही बोल रहे थे। बंगाली नाटक बहुत ज्यादा, इवन आकाशवाणी बांग्ला, आकाशवाणी कोलकाता का जो यूट्यूब चैनल है, उस पे इतने सारे रेडियो प्लेज, मतलब इतने सारे नाटक आ गए। लेकिन मैं वही पूछ रही थी कि दूसरे लैंग्वेजेस में क्यों नहीं हो रहा है ये सब। मैडम, कन्नड़ में बहुत सुंदर नाटक हुए हैं।
कन्नड़ में है, मलयालम में है, मराठी में, यू नेम इट एंड आई कैन टेल यू। लेकिन ये है, अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, कलकत्ता में आप बंगला अगर नाटकों पे कर रही हैं तो एक डॉक्टर दीपक चंद्र पोद्दार हैं, जो ओके हमारे साथी थे, जिन्होंने बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते नाटक में, रेडियो नाटक में। और न केवल ये किया, उन्होंने रेडियो नाटक और पीएचडी की रेडियो नाटक पर डीलिट कर डाला, और अब वो वहाँ जो रविंद्र भारती विश्वविद्यालय है वहां पर वो रेडियो नाटक पढ़ा। तो उनके पास भी बहुत जानकारियां हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि ये भी हम करेंगे। आप चाहेंगी तो हम भानावत जी से शेयर करेंगे उनका उनका संपर्क भी। तो ये सारी बातें सही हैं और इनको हमें सुरक्षित करने की कोशिश करनी है। सर ये बात तो आप थैंक यू सही सो कह मच रहे हैं सर सर, बस मुझे एक चीज ध्यान मैं है। बताना चाहूंगा, क्षमा करेंगे। पद्मिनी जी, आपने कहा कि आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, लेकिन चूंकि मैं रेडियो में मैंने काम किया है, मैं प्रसारण निष्पादक भी था, बाद में प्रोड्यूसर हुआ। आपकी भाषा बहुत अच्छी है और आप बहुत मधुर बोलती हैं। आपकी जो भाषा है बिल्कुल रेडियो के लिए है। तो आप किसी अपने आसपास के केंद्र पर जाकर ऑडिशन दीजिएगा और रेडियो के कार्यक्रमों में हिस्सा लीजिएगा। मुझे लग रहा है विश्व रेडियो दिवस पर धन्यवाद ये बहुत अच्छी बात होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और धन्यवाद डॉक्टर इन्होंने वीडियो धन्यवाद। बंद कर रखा था, तो रेडियो की अनुभूति हो नमस्कार। रही थी हमें कि रेडियो से ही सुन रहे हैं अपन। और नमस्कार एक जी। बात मैं भी रखना चाहूंगी, अगर आप सभी अनुमति दें तो। पद्मिनी आप क्या इंद्रप्रस्थ चैनल, विविध भारती और एफएम गोल्ड, इन पर अगर जाएंगे अभी लेटेस्ट में भी, तो कई नाट्य रूपांतर हो रहे हैं। हवा महल अगर आप पुराना देखेंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी मिल जाएगी। जबकि इंद्रप्रस्थ जो चैनल है उसमें तो शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और यहाँ तक कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में अभी भी बहुत सारी चीजों को सुनाया जा रहा है। लेकिन इस बात में एक बात मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगी कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में बहुजन सुखाय के कॉन्सेप्ट पे हमारी सोसाइटी ज्यादा आ गई है, और हमारे कान सिर्फ वो चीजें सुनना चाहते हैं जो इजी अवेलेबल हो जाए। शायद यही कारण है कि हमारी आकाशवाणी में कुछ ये जो हमारे चैनल है उनको बंद करना भी पड़ा, क्योंकि वहां पर इतने लोग उनको सुनने वाले नहीं उपलब्ध हो पा रहे थे। लेकिन फिर भी अपने वजूद को कायम रखते हुए राष्ट्रीय स्तर के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनको प्रसारित किया जाता है, किसानों की बातों को रखा जाता है। इसके अलावा समाचारों का प्रसारण भी, और आम महिलाओं के ऊपर होने वाले बहुत सारे कार्यक्रम भी अभी चलाए जा रहे हैं। तो निश्चित ही आने वाले दौर में इस पर अगर आप सभी एकजुट होकर ऐसे ही आवाज उठाएंगे और एक आंदोलन का रूप ले लेंगे, तो हमारी आकाशवाणी में फिर से वो टाइम आ जाएगा जब स्थानीय कार्यक्रम भी पुरजोर से, बहुत तेजी से सुनाए जाएंगे। थैंक यू सो मच। पद्मिनी थैंक यू जी, सो मच आपके प्रियंका जी। सुपरवाइजर थैंक यू। कौन है नमस्कार आपके? जी। पद्मिनी जी, सुपरवाइजर कौन है आपके? डॉक्टर साई प्रसाद। अच्छा, क्योंकि दयानंद सागर में तो मैं आया था यूजीसी की टीम में, अभी जब ये नेक की टीम में ओ सर ये अभी मैंने विजिट। इसी साल अभी जनवरी में ही एडमिशन लिया है हाँ, तो पीएचडी में। साल भर पुरानी बात है, वो नाम तो 2-3 थे, मैं भूल रहा हूँ कौन कौन मिले थे। तो चलिए, वहां से आप पीएचडी कर रहे हो, तो नाटकों की तो मुझे लगता है राजीव जी ने सही कहा है कि हिंदी का तो हमने भी बहुत सुना है। वो जब दौर था, अब जो सर चिरंजीत का मुझे अभी तक याद है ना? भानावत जी, मैं बताऊं आपको, और ये चिरंजीत आपके हैं। पूरे शंकर अक्षर में लिखा उनके करते थे। पहले दीनानाथ हैं। दीनानाथ, दीनानाथ, चिरंजीत, बिल्कुल। क्योंकि मैंने उस समय सर जब आर्टिकल लिखा, उसके बाद जी। सत्येंद्र शरत एक बहुत बड़ा नाम है। हाँ हाँ सत्येंद्र हाँ, शरत ने रेडियो नाटकों को आधुनिक बनाया, पूरी जी दुनिया के नाटक जो है वो लेकर आए। उसके जी बाद जी यानी आप कह सकते हैं कि ये पूरी दानिश इकबाल ने बहुत काम किया। अभी विनोद कुमार हैं जो दिल्ली में कर रहे हैं, और काजल सूरी हैं, बहुत अच्छा काम। जी और अच्छा, ऐसा नहीं, देश भर में कर रहे हैं लोग। जी जी, आकाशवाणी की शक्ति ही ये है कि देश बिल्कुल। भर के स्टेटस। आकाशवाणी का मतलब दिल्ली है, पर दिल्ली ही जी नहीं है। जी आकाशवाणी जी का मतलब अंबिकापुर भी है। आकाशवाणी जी का मतलब यवतमाल, आकाशवाणी का मतलब रत्नागिरी भी है। आकाशवाणी का मतलब तिरुचिरापल्ली भी है। तो जी ये है कि यही इसकी सर, खासियत है, यही इसकी हमारे शक्ति है। जयपुर से नंदलाल जी शर्मा, आप तो जानते होंगे ना उनको? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने नंदलाल जी। जी शर्मा, वो कितने पॉपुलर थे। और आपने 65 की जो बात की, 71 का मुझे ध्यान है, वो गीगले का बापू और लड़े सूरमा आज जी। ये 71 की जो वॉर थी भारत पाकिस्तान की, गणपत लाल डांगी, उनके ये जी सटायर हुआ करते थे। तो वो तो साहब एक इतिहास हो जी, गया बिल्कुल अब सही तो। कह रहे हैं। लेकिन समस्या यही है कि जब आकाशवाणी की बात है तो इतिहास की तो बहुत सारी चीजें बता देते हैं। आज क्या हो रहा है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। अब नहीं, एनुअल ये अवार्ड्स खत्म हो गए, जैसा आपकी बात से लगा मुझे कि नहीं, एनुअल मुझे अवार्ड्स देखिए, की। मैं चूंकि मैं फिर दोहरा दूं कि मैं कोई मतलब उसके चूंकि भीतर अब नहीं हूं, हाँ हाँ लेकिन मुझे उसकी चर्चा सुनने को उतनी नहीं मिलती। अब चूंकि अभी प्रियंका जी ने जिक्र
जो प्रियंका जी ने कहा इंद्रप्रस्थ राजधानी सब, मैं उसका तो डायरेक्टर ही था इन चैनल्स का। तो सच्चाई है। अच्छा एक बात बता दूं, आपके बहुत से जो यहाँ हिस्सेदार लोग हैं, प्रतिभागी हैं, आजकल एक अच्छी बात ये आकाशवाणी के देश भर के सारे स्टेशंस और सारी चैनल्स एक मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है, यानी उसका नाम है न्यूज ऑन एआईआर। उसमें यह है कि आप हिंदुस्तान का कोई स्टेशन सुनना चाहें, यहाँ सुन, आप दिल्ली में बैठ करके आप कलकत्ता सुन लें, आप चेन्नई सुन लें, आप अंबिकापुर सुन लें, आप रामपुर सुन लें, आप वॉशिंगटन डीसी में बैठकर दिल्ली और अंबिकापुर सुन लें, आप टिम्बकटू में बैठकर सुन लें, क्योंकि इंटरनेट के जरिए है तो दुनिया भर में अवेलेबल है, भी सुन सकते हैं। जी हाँ, सुन सकते हैं। उपलब्ध मेरे ख्याल उस पर। और ये जो बात प्रियंका जी ने बहुत अच्छी कही, सच बात है, नाटक हो रहे हैं और नाटक प्रसारित भी हो रहे हैं। कहा कि अब होता क्या है ना कि एक चीज और हुई है भानावत जी, क्या है इसके लिए इस पर बड़ी कविताएं भी लिखी जा रही है। मैं साहित्य की दुनिया में अगर अभी क्या है, हमारा ध्यान एकाग्र होना बड़ा कठिन हो गया है। ये ऐसा विस्फोट का युग है, सूचनाएं बरस रही हैं, लगातार आपको डाइवर्ट कर रही हैं। आप 2 मिनट बात करते हैं, फिर व्हाट्सएप पे एक मैसेज देखते हैं, फिर आप सबको जवाब, आप फेसबुक खोलते हैं, एक को लाइक, एक में सादर नमन, एक में श्रद्धांजलि, एक पे फिर बहुत बहुत बधाई। ये ऐसा हमारा फ्रेगमेंटेड किस्म का माइंडसेट होता चला, जहां ये कि हम स्थिर चित्त होकर चीजें नहीं कर पा रहे हैं। रेडियो की सबसे बड़ी खासियत क्या है? देखिए, रेडियो सीमा ये है कि उसमें दृश्य नहीं है, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी है, क्योंकि जहां दृश्य नहीं है वहां दृश्य फिर उसका जो श्रोता है अपनी कल्पनाशीलता से बनाता है, जैसे आप पढ़ते समय बनाते हैं। इसीलिए रेडियो जो है वो, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। मैं साइंस फिक्शन का अगर एक नाटक बना रहा हूं, और मैंने बनाए हैं, उसमें मैं साउंड इफेक्ट्स दूंगा और कहूंगा कि हमारा नायक या हमारी नायिका मंगल ग्रह पे पहुंच गई, और ऑडियंस मान लेगा। टेलीविजन पर आपकी जान निकल जाएगी वो इफेक्ट क्रिएट करने में। पर रेडियो में चूंकि हम श्रोता की अपनी, इसका कोई जैसे छोर नहीं है, साथ ले रहे हैं, इसलिए यह है कि यहाँ नाटक हो, कोई भी विधा हो, उसके अंदर आप सब कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ सुंदर कर सकते हैं। पर यही है कि अब धीरे धीरे हमारी नई पीढ़ी को भी थोड़ा सा ठहराव, थोड़ा इत्मीनान, उसके साथ चीजों के साथ जुड़ना होगा, और शायद तब उनको वो चीजें फिर से दिखाई देंगी। नाटक ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी ने, नाटक ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, दिल्ली से हो रहे हैं, देश भर में हो रहे हैं। तो थोड़ा सा ये उसको सुनने का, हाँ, अब एक अच्छी बात ये हो गई है कि चूंकि ये धीरे धीरे एक पॉडकास्ट को जो जिक्र हुआ था, वो भी एक महत्वपूर्ण बात, उसका जिक्र हो जाना चाहिए। क्या है, एक समस्या तो देखिए आई है। पहले एक जमाना था, रात 9:30 बजे भारतीय कार्यक्रम है जी, महीने के चौथे गुरुवार को। अब महीने के चौथे गुरुवार को आप सब काम छोड़कर वो कर पाए, आज के जमाने में हो सकता है न कर पाए। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ है कि एक जो पॉडकास्ट है, प्रोग्राम ऑन डिमांड, यानी वो आपको डिजिटली अवेलेबल है और आप अपनी सुविधा से उसे सुन सकते हैं। ये युग भी अब आ गया है। तो धीरे धीरे जो रेडियो हो, टेलीविजन हो, कोई भी संचार माध्यम हो, उसे नई टेक्नोलॉजी, नए जमाने, नए ऑडियंस, नए लोगों के साथ मिलकर के अपने सुर जो हैं वो नए करने पड़ेंगे। अभी अभी वसंत पंचमी बीती है, महाकवि निराला की याद कीजिए, नव गति नवलय ताल छंद नव, और फिर वो अंत में कहते हैं, नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। तो नया लगातार हमें चाहिए। ये नया आकाश है, इसमें नए पक्षी हैं, इसमें नए स्वर भी चाहिए। जी चलिए सर, ये यात्रा यूं ही चलती रहे। मुझे लगता है समय काफी हो गया है, और नित्य नवीनता की खोज में और विचारों की इस यात्रा को हम ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। तो अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं अनुरोध करूंगा भारतीय विद्यापीठ के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की हेड आयुषी सचदेवा जी से। दयानंद जी, आपको बहुत विशेष बात करें तो 2 मिनट में कह दीजिए, समय बहुत हो गया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर दयानंद का ध्यान संस्कारम विश्वविद्यालय में अब अध्यापनरत हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम है, इससे आम आदमी को रेडियो से पुनः जुड़ने का और शोध के नए आयाम स्थापित हुए। तीनों वक्ताओं ने रेडियो के बारे में जो विस्तार से बताया है, उस रेडियो की जो भूमिका है वो जीवंत हो गई है। इससे 1965 और 1971 के युद्धों में रेडियो की जो भूमिका थी, उसका हमें उन्हें जो झांकी मिल गई है। ये इसके लिए मैं आपको और सभी आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दयानंद जी, आपने विचार रखे और हमें प्रोत्साहित किया। और अब आभार प्रदर्शन के लिए
भारतीय विद्यापीठ के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की हेड आयुषी सचदेवा चोपड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि वे आभार प्रदर्शन करें। आयुषी जी का भी मीडिया में लंबी पारी रही है, आपने दिल्ली के कुछ प्रमुख टीवी चैनल्स और समाचार पत्रों में भी काम किया है और उसके बाद अब आप अध्यापन से जुड़ी हैं। आयुषी जी। थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग टू ऑल द एक्सपर्ट्स। बनावत सर का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सर मेरे गुरु रहे हैं, तो आपसे मैं इंट्रोडक्शन तो बिल्कुल नहीं, आपका बहुत बहुत आभार है मेरे जीवन पर। और सभी को वर्ल्ड रेडियो डे की पहले तो बहुत बहुत बधाई दूंगी वोट ऑफ थैंक्स से पहले। और जब मैंने लॉगिन करा, बस मेरे मन में ये बात थी कि मैं शेयर करूं। लॉगिन करते ही वर्तिका मैम की आवाज सुनी तो मुझे लगा कि इतनी मधुर सी विंडो है, मैंने कहीं और तो स्विच ऑन नहीं कर दिया है। तो वर्तिका मैम, यू रियली हैव अ वेरी आई मेलोडियस वॉइस, मतलब बहुत अच्छी आपकी आवाज है। और तीनों ही एक्सपर्ट्स ने बखूब कहा। इसका प्रूफ ये है कि आज सवालों की और तारीफों का जो पुल है वो 8 बजने को आ रहे हैं और रुक नहीं पा रहा है बनावत सर। तो आज के इस सेशन की जो हम सक्सेस है और डिलीवरी है उसको इसी बात से जज कर सकते हैं। तो ऑन बिहाफ ऑफ कम्युनिकेशन टुडे एंड भारतीय विद्या डॉक्टर वर्तिका मैम को और डॉक्टर प्रियंका मैम को एंड श्री राजीव सर को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला और ऑडियंस को इस तरीके से बांधा कि मुझे लगता है उन्होंने सारी हिस्ट्री से लेके आज तक का करंट ट्रेंड तक उन्हें आज जागरूक कर पाए, वो अपने आप को और जान पाए। और काफी 2-3 टॉपिक राजीव सर ने सजेस्ट कर दिए जो आज आने वाले वेबिनार में हम आगे रख भी सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सेकेंडली आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू बनावत सर फॉर विजनिंग दिस होल वेबिनार सीरीज। तो ये भी एक नया डेवलपमेंट है कि घर बैठे हैं, कहीं भी किसी सिचुएशन में है, बट नॉलेज गेन कर सकते हैं। और सेकेंडली प्रोफेसर एमएन हुडा सर जिन्होंने अपने पूरे सपोर्ट के साथ इस विजन को पॉसिबल करा। सो थैंक यू ऑल टू माय बैक एंड टीम, पुष्पेंद्र सर, प्रियंका मैम एंड एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। चलिए, हमारी ओर से भी धन्यवाद इस सूचना के साथ कि अभी वर्तिका जी कुछ दिन पहले आकाशवाणी गई थी, मैंने इनके एफबी पे देखा था। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों पर आपकी एक परिचर्चा थी, तो मुझे पता नहीं आकाशवाणी का अपना यूट्यूब चैनल है क्या दिल्ली का? दूरदर्शन के तो बने हुए हैं और हम प्रोग्राम देख सकते हैं, यदि आकाशवाणी का भी इस तरह का चैनल है सर है बिल्कुल है। हाँ, तो ये प्रोग्राम उसमें अपलोड करेंगे। तो पद्मिनी जी और जो दूसरे रिसर्चर हैं इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो वो भी सुन सकते हैं कि इन साहित्यिक कार्यक्रम, उसमें नाटक, परिचर्चाएं और वार्ताएं और बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं। तो आजकल क्या हालचाल है उस आकाशवाणी के, वो उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। हमारी अगली वेबिनार की सूचना अभी फाइनल नहीं है, तो लेकिन वो पाइपलाइन में है। तो अगले 5-7 दिन में हम 2-3 टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं। जैसे एक्सपर्ट्स फाइनल होते हैं हम इसी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और मैंने आपसे निवेदन किया था कि जो हमने आपको इसकी भेजे थे सूचनाएं, उसमें व्हाट्सएप लिंक पे दिया हुआ है और यूट्यूब चैनल का लिंक पे दिया गया, तो आप उसे ज्वाइन करें ताकि तुरंत आपको इसकी सूचनाएं मिल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत जी। रेडियो बिरादरी के सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी, मैं कहना चाहता हूं कि रेडियो बिरादरी का, दुनिया भर की रेडियो बिरादरी का ये साझा उत्सव है और इसके लिए आप हम सब आज जुड़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। अभी अपना जो विंडो है खुला रहेगा कुछ समय तक। जो लोग सर्टिफिकेट, जिन मित्रों को नहीं मिले हैं, वो सर्टिफिकेट के लिए वेट कर सकते हैं और प्रियंका जी उस सारे उसको संभालेंगे सिस्टम को, जिनको नहीं मिला है उनको हेल्प कर देंगे। जी सर, बिल्कुल। प्रियंका, थैंक यू। थैंक यू सर।